behalf of the coordinators and members of Innovation Cell of Shri Guru Gobind Singh College, I extend a very warm and hearty welcome to our eminent speaker of the day, Sardar Balbir Singh Ji, who will be conducting a workshop on entrepreneurship skill, attitude and behavior development. I also extend a warm welcome to all the faculty members and students present over here. This workshop is being organized by the Innovation Cell of our college, which has been set up as per the guidelines of Innovation Cell, Ministry of Education, Government of India, with an objective to foster a culture of innovation and promote out-of-box thinking amongst faculty and students, and to give a boost to the government's Make in India program. With the unflinching support of our visionary management and the guidance of our honorable principal, the Institution Innovation Council of our college received a star rating of 3.5 by Ministry of Education, Government of India in the very first year of its establishment for its unremitting endeavor to promote innovation and startup culture in the college. I would also like to inform all of you that under the leadership of our honorable principal, our college has successfully framed a national innovation and startup policy to encourage students to adopt entrepreneurship as a career option and to develop a culture of innovation and startup. Apart from this cell continues to promote creative energy of our students by organizing several seminars, panel discussions, expert sessions, competitions, training programs and workshops, etc. so that they work on new ideas and the students are able to develop their entrepreneurial and innovative abilities. Today's session is also an endeavor in this direction. I deem it as my proud privilege to introduce our esteemed resource person, Sardar Balbir Singh Ji. He is highly qualified with a vast experience of more than 30 years and has been trained by EDII and ICED Ahmedabad. He worked for NITCON, a consulting and training organization, and served NITCON as Vice President for the last 7 years. He has to his credit several research papers published in reputed journals and magazines. Since March 1985, he is in the profession of skill development, personality development and entrepreneurship and has established 11 skill development centers in Gurdaspur district of Punjab. So it is obvious that Sir has trained large number of people in skill and entrepreneurship development. He is also on the panel of various engineering colleges and universities and conduct faculty development program for their faculty. He has been honored with Excellent Work Award by Economic Growth and Research Association of Punjab for promoting entrepreneurship in the state of Punjab. He has also been honored for his excellent services by Jalandhar Management Association. We welcome you, sir. Thank you. Now I request the coordinator of Innovation Cell, Dr. Saroj Pala, and the ex-president, Dr. Taranjit Rao, to present a token of love to our eminent resource person, Sardar Balbir Singh Ji. मैं लगातार इंग्लिश बोलने लग गया हूँ, पहले अटक जाती थी थोड़ी। मिक्स चलेगी बेटा? ठीक है। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा इंटरेक्टिव सा सेशन रखेंगे, थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछेंगे। क्वेश्चंस के लिए हम लास्ट में भी 10-15 मिनट रखना चाहूँगा मैं, लेकिन आप बीच में भी अगर एकदम आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप पूछ के उसको इंटरेक्टिव बना दें, मतलब डबल वे ट्रैफिक सी रहेगी। मैं बोल रहा हूँ तो आप भी उसमें डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा हटके और अलग सा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप का। मैडम ने टाइटल बताया था इसका, कोई टाइटल रिपीट करेगा दोबारा? आज का जो टॉपिक है उसका टाइटल उन्होंने अनाउंस किया था, लिखा हुआ इधर नहीं, इधर नहीं था, मेरी स्लाइड आ गई। क्या टॉपिक था? आगे वो तो बाद में बताया।
मैं सिर्फ ये टेस्ट कर रहा था कि आपने मैडम को कितना सुना। इसका मतलब आपने बिल्कुल नहीं सुना, तो फिर आप मेरे को भी सुनने के मूड में हो के नहीं। अभी अभी तो मैडम ने टॉपिक बोला, वो क्या था? एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। तो हम चारों पे बात कर लेंगे थोड़ी थोड़ी, लेकिन आई विल लाइक टू गो बैक टू फ्रंट। लेट्स टॉक समथिंग अबाउट बिहेवियर, कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। कॉन्सेप्ट से समझते हैं आप क्या है? व्हाट इज कॉन्सेप्ट? एनीबॉडी गेस? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। कौन सा आइडिया? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और डिटेल्ड आइडिया। Detailed abstract idea, sir, you can say it otherwise, sir. कुछ भी कह सकते हैं। नहीं सर, आइडिया से रिलेटेड। मीनिंग और कॉन्सेप्ट में क्या फर्क है? मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। जब मैं बात कर रहा हूं एंटरप्रेन्योरशिप पे भी बात नहीं करेंगे। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय मीनिंग? किसी चीज का अर्थ और किसी चीज का कॉन्सेप्ट। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, उसका मतलब सर डिफरेंस क्या है? मीनिंग और कॉन्सेप्ट कोई बताएगा? नहीं? कुछ आइडिया है बच्चे? बड़े घबराए से बैठे हो, जबरदस्ती तो नहीं आ गए कि चल अंदर, ऐसा तो नहीं हुआ? घबराई सी लग रही है बेटा, क्या बात? ढीली ढीली हल्की हल्की बातें करेंगे, वो तो ऐसे घबराई है जैसे इसके बाद उसको 10 साल की सजा होने वाली है। मेरे को देख के तो नहीं घबराई? वेरी गुड, खुल के बैठो आराम से, इजी। आई विल जस्ट हैव द सेशन अबाउट माय प्रैक्टिकल एंड academic experiences of around 37 years. I came to this profession in 1985. तो मैं बुकिश को थोड़ा वाइड करूंगा, अपना प्रैक्टिकल और एकेडमिक एक्सपीरियंस में बात करूंगा। अगर हम उदाहरण पे से समझने की कोशिश करते हैं, आदमी का अर्थ मनुष्य, आदमी का अर्थ व्यक्ति, आदमी का अर्थ इंसान, आदमी का अर्थ पर्सन। तो ये हम क्या दे रहे हैं? वी आर गिविंग मीनिंग। लेकिन अगर मैं आपको गेट के बाहर छोड़ा हूं और आपने कभी आदमी ना देखा हो, तो आप आदमी पहचान लोगे? क्योंकि आदमी का अर्थ मनुष्य, आदमी का अर्थ व्यक्ति, आदमी का अर्थ इंसान, आदमी का अर्थ पर्सन। लेकिन इससे हम आदमी नहीं पहचान पाएंगे ना। दैट मीन्स कि हमारी लेवल पे, जैसे मुझे मैडम ने बताया कि मैक्सिमम स्टूडेंट या फाइनल ईयर पे बैठे हैं, तो हमें मीनिंग से कॉन्सेप्ट पे जाना है। किसी भी चीज में, किसी भी सब्जेक्ट में। मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग वेरी जनरल दैट यू हैव टू मूव फ्रॉम मीनिंग टू कॉन्सेप्ट। मीनिंग होता है 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक, स्कूलिंग तक। लेकिन जो लोग मीनिंग से कॉन्सेप्ट पे नहीं शिफ्ट करते, वो फिर बीए के बाद भी 8वीं वाली बात करते हैं, 7वीं वाली बात करते हैं, फिर उन्हें कमेंट पड़ता है ये बच्चों वाली बात कर रहा है, छोटों वाली बात कर रहा है, क्योंकि वो मीनिंग की बात कर रहा है। हमें हर चीज में अब इस स्टेज पे मीनिंग से कॉन्सेप्ट पे जाना है। सो आदमी का अर्थ क्या है? सर आदमी का अर्थ मनुष्य, दूसरा बोलेगा आदमी का अर्थ व्यक्ति, तीसरा बोलेगा आदमी का अर्थ इंसान, चौथा बोलेगा आदमी का अर्थ पर्सन। टू ऑल रिस्पेक्ट टू द मैडम्स, ये क्लासों में यही चली जा रहा है, मीनिंग करा के खत्म, कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। सो कॉन्सेप्ट ऑफ मैन, आदमी का कॉन्सेप्ट क्या है? आदमी वो है जो बोल सकता है, जो लिख सकता है, जो लैंग्वेज बोलता है, जिसकी स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, जिसकी सोशल वैल्यूज हैं, जिसकी रिलीजियस वैल्यूज हैं, जिसकी पॉलिटिकल वैल्यूज हैं, जो ड्रेसअप होता है, जिसके पास एटिकेट्स हैं, जिसके पास मैनर्स हैं। तो हमें धोखा नहीं लगेगा ना आदमी पहचानने में, हम एकदम आदमी पहचान लेंगे बाहर जाके। ऐसा नहीं होगा कि हम ऊंट को जब ही पालेंगे शायद ये क्लास में आदमी बताया था, या एलिफेंट को पकड़ लेंगे कि शायद आदमी बताया था। सो आदमी का अर्थ मनुष्य, इंसान, व्यक्ति। इससे हमने एक ऊपर लेवल आना, वी हैव टू मूव टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द थिंग्स। तो आदमी का कॉन्सेप्ट, सर आदमी वो होता है जो बोल सकता है, जो लिख सकता है, जो ड्रेसअप होता है, जो जिसके पास एटिकेट्स हैं, मैनर्स हैं, वैल्यूज हैं। तो हमें बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हम 2 मिनट में पहचान के बता देंगे कि आदमी है या आदमी नहीं है। सो आप लोगों से ये खास गुजारिश है कि आप कॉन्सेप्ट पे जाया करो।
तो आज कोशिश करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप की मीनिंग तो बहुत हो गए, अब कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। सो एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर, उद्यमता का बिहेवियर या बिहेवियर? एनीबॉडी अंडरस्टैंड्स व्हाट इज बिहेवियर? टर्म काफी यूज होती है। व्हाट इज बिहेवियर? कोई बोलेगा कुछ? दो लाइनें। आचरण अपने आप को कैसे कंडक्ट करता है सर, किसी का अच्छा कैसे प्रेजेंट करता है? और कोई बिहेवियर? टाइटल का नाम है, मैं टाइटल से ही चल रहा हूँ। आदमी की जैसे डिस्पोजिशन होती है, तो उसकी बेसिकली डिस्पोजिशन, उसकी आइडिया कॉन्सेप्ट जो माइंड की मेंटालिटी होती है, उसकी जो प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन होती है, उसको बिहेवियर कहते हैं, डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट। ज्यादा डूंगा चले गए हम, है ना? थोड़े ऊपर रहते हैं। कुछ बिहेवियर से सबसे बड़ी बात ये ध्यान सुनिए हमने, एक पर्सन किसी सिचुएशन से कैसे रिएक्ट कर सकता है, कैसे उस पर रिएक्ट कर रहा है। जैसे मैं अब आपके साथ कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, तो आप मेरे रिएक्शन से बिहेवियर को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहना चाहते हो कि नहीं? ऐसे ऐसे कर रहा है क्या बात? हाँ बोल, हाँ और जोर से बोल। यस सर। हाँ, आवाज निकली है थोड़ी। बिहेवियर, एनीबॉडी कैन, एक दो लाइनें, बड़ी कॉमन टर्म है। तेरा बिहेवियर नहीं अच्छा, तेरा उसका बिहेवियर बड़ा अच्छा है, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। टाइटल में ना एटीट्यूड एंड बिहेवियर आया, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, हमें पूरा पेपर होता था बिहेवियर, पर मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा इस पे बिहेवियर पे, फिर हम एंटरप्रेन्योरशिप पे आ जाएंगे। एनीबॉडी कैन ऐड समथिंग अबाउट बिहेवियर? यस सर, बात करने की भाषा, किस भाषा में वो बात कर रहे हैं, सरलता, और कई फटाफट बोलते हैं, कई समझते हैं पहले फिर उस पर रिएक्ट करते हैं। पार्ट ऑफ बिहेवियर, कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। और कोई बोलेगा? डिफरेंट कंडीशंस में कैसे लिखते हो इस पे? साइन कर रहे हो? मेरे भी लगा लो, मैं भी आया हूँ, मेरा पता नहीं लगेगा मैं आया था कि नहीं आया। What is my personality? This is a very common question. Starts from when I am 3 years old. 2.5 साल का था तो मेरे पर्सनैलिटी एनालिसिस हुए। शॉपिंग स्कूल्स में मैं अपनी बेटी को एडमिशन देने गया तो मैंने कहा, मैडम आप मेरी बेटी में क्या देख रहे हो? कहती मैं इसकी पर्सनैलिटी देख, 2.5 साल के बच्चे की पर्सनैलिटी। एंड इट गोज अप टू 60, 65, 70 years old. People are there to look your personality. पर्सनैलिटी का बड़ा झगड़ा है और पर्सनैलिटी के कॉन्सेप्ट पे बहुत लिखा लोगों ने। मेरे अंदाजे से कम भी देयर आर 42 राइटर्स हु हैव रिटन अबाउट द पर्सनैलिटी, जिनको मैंने पढ़ा थोड़ा टाइम लगा के, लेकिन रोगर ने उसको कंक्लूड किया था। जे रोगर एक साइकोलॉजिस्ट नहीं था, बिहेवियरल साइंटिस्ट था, ऑस्ट्रिया का, उसने इसको कंक्लूड किया था। सो व्हाट इज पर्सनैलिटी? अगर मैं अपनी पर्सनैलिटी को जानने की कोशिश करूंगा तो मुझे पहले पर्सनैलिटी के कॉन्सेप्ट को जानना है। तो अगर मुझे पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो मैं एंटरप्रेन्योरियल पर्सनैलिटी भी जान जाऊंगा, उद्यमता की पर्सनैलिटी भी जान जाऊंगा। अगर मैं उद्यमता की पर्सनैलिटी जान गया तो मुझे उद्यमी और उद्योग में आना इजी हो जाएगा, जो आज का मेन टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप पे। और बीच में मैडम ने बोला कि हम एक नेशनल पॉलिसी भी बना रहे हैं कि लोग अपने काम में ज्यादा आए, क्योंकि अब और चॉइस भी नहीं देती। कोरोना के 2 साल में कैन समबडी कैन गिव ए स्मॉल फिगर कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हुए? वेरी अनएस्टिमेटेड फिगर, जो हो गए मैं मान लूंगा। एनी फिगर 2 साल में, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ वर्ल्ड की बताऊंगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। 2 करोड़ 5 करोड़ लास्ट बोली नहीं लग रही, लास्ट बता दो कोई भी। 6.5 का क्या शराबी तत्व लग रहा है मुझे मेरी तरह। सरकारी फिगर बेटा 12 करोड़ दी है, ਤੇ जिन्हें अनएम्प्लॉय ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ 12 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਲਾਈਡ ਆਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਨੀਡ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ। You will not get job.
37 साल नौकरी करने के बाद भी मुझे कोई 25-30 हज़ार भी नहीं दे रहा। मैं पिछले 3 साल से बड़ी जगह बायोडेटा भेज चुका हूँ। वो कहते कि ऑनरेडी आ जाओ, वैसे आना तो आ जाओ। आर यू गेटिंग मी? मैं क्या संदेश आपको पहुंचा रहा हूँ? यस सो हम बात कर रहे थे पर्सनैलिटी की। मेरी पर्सनैलिटी वो है जो मेरा बिहेवियर है। डेविड मैकलाइन ने सबसे ज्यादा बिहेवियर पे बोला, वो ये कहता है कि हर इंसान सोचता है। इस बात को ध्यान से सुन लेना, थोड़ा सेंसिटिव सा है, इसको मैं इजी बना के दूंगा आपको, लेकिन इसको ध्यान से सुना कि हर आदमी सोचता है। मैन हैज अ स्किल ऑफ थिंकिंग। मेरे पास एक थिंकिंग प्रोसेस है, लेकिन ये बाकी जनरेशंस के पास नहीं है। जैसे हमारे धर्म बताते हैं कि 84 लाख जून है ना, बोलते हैं ना 84 लाख जूनों से घूम के आना पड़ेगा। तो 84 लाख में एक इंसान है जिसको ऊपर वाले ने ब्लेस किया विद प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। ये हमारी थिंकिंग थी कि जब हम इस दुनिया में आए तो हमने सबसे पहले अपने आप को ढका, किसी और ने नहीं ढका। कोई हाथी, कोई घोड़ा, कोई कुत्ता देखा पेंट कमीज में, सूट में, टाई नहीं देखा। फिर हमने हीट पैदा की, वी वांटेड टू कुक द फूड। फिर हमने घर उसको खाना को पकाया। फिर हमने हट बनाया, हट तो एनिमल्स ने भी बनाया। फिर करते 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 हम रेड़े पे आ गए, फिर हम बसेस पे आ गए, ट्रेन पे करते करते शताब्दी, सुपर शताब्दी, स्वर्ण शताब्दी। It is because of the thinking process human beings have. सोच ही आगे जब लिटरल थिंकिंग में जाती है, लगातार थिंकिंग में आती है, तो उसको बोलते हैं, आपकी स्लाइड पे था, इनोवेटिव थिंकिंग। इनोवेशन की कोई बात हो रही है। इनोवेशन इज नथिंग बट इज ए पार्ट ऑफ थिंकिंग। माय रिक्वेस्ट इज कि यू स्टार्ट थिंकिंग। थिंकिंग के बाद इनोवेशन आएगी, इनोवेशन के बाद क्रिएटिविटी आएगी। हमारे यहाँ छलांग बड़ी जल्दी मारते हैं लोग। मैं बड़े कॉलेजेस में जाता हूँ, इनोवेशन क्रिएटिविटी की बात होती है, बट आई अफ्रेड दैट 70% पीपल डोंट ट्राई टू थिंक। 24 घंटों में कोशिश किया करो, 24 मिनट सोचा करो। यू आर ब्लेस्ड विद वन स्किल, दैट इज प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। और कोई नहीं सोच सकता। आंखें बंद, चुपचाप बैठे, स्टार्ट थिंकिंग। कुछ नहीं तो अपने बारे में ही सोचना शुरू करो। रात को सोने से पहले आंखें बंद 15 मिनट के लिए, आज मैंने क्या खोया और क्या पाया। What Roger says, retrospective and prospective of life. You can think about a day, you can think about a week, you can think about a month, you can think about a week. इस साल मैंने क्या खोया क्या पाया, इस हफ्ते मैंने क्या खोया क्या पाया, इस महीने में मैंने क्या खोया क्या पाया। आज रात को ये एक्सरसाइज करना है। सोने से पहले देखना कि मैं सवेरे तकरीबन 6:30-7 बजे उठ गया था, 11 बज रहे हैं, सवेरे 6 बजे से रात को 11 बजे तक मैंने व्हाट आई हैव लॉस्ट एंड व्हाट आई हैव गेन्ड। ये आपको एक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग के कल्चर में लाएगा। हम इंसान है, हमारा सोचना बहुत जरूरी है। जो हमारे पास फिगर है वो ये कह रही है कि अराउंड 75% पीपल नेवर थिंक। उनको इतनी मारो मार, इतनी हफड़ दफड़ मची हुई है कि दे डोंट हैव द टाइम टू थिंक। एंड थिंकिंग इज द ओनली स्किल विच हैज बीन प्रोवाइडेड और ब्लेस्ड बाय गॉड टू ह्यूमन बीइंग। 60% हम वैसे ही आगे हैं क्योंकि हमारे पास सोचने का एक तरीका है। जो लगातार सोचते हैं, लगातार सोचते हैं, लगातार सोचते हैं, वो उनका फीलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। दे कन्वर्ट देयर थिंकिंग इनटू फीलिंग। फीलिंग क्या होती है? व्हाट इज फीलिंग? हम यूज की बड़ी बारी फीलिंग, भावना, भावना कुमारी के भावना कौर देख ले, ठीक ठीक लगा ले। व्हाट इज फीलिंग? फीलिंग को कभी आपने देखा? व्हाट इज इट? हम महसूस करते हैं। वो ठीक कह रहा था, मैंने तो वैसे थोड़ा सा ये ब्रेकिंग द आइस होती है। मुझे लगता है कि लोग कहीं पता नहीं कहाँ गिरने वाले हैं, तो मैं ऐसा कुछ छोड़ देता हूँ बीच में। वैसा मैं ऐसा हूं नहीं। वो ठीक कह रहा है। ये हमारी भावनाएं हैं। कैसे? हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस, लाफिंग, एंग्री, सैड मूड,
हैप्पी मूड, ठंड, गर्मी, व्हाट आर दीज? दीज आर माई फीलिंग्स। क्या है मेरी? हिमाचल से आया, मिलते हैं हमारे फीचर उत्तराखंड और हिमाचल के, है ना? पता लग रहा है थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे मैं जो बोल रहा हूँ पता लग रहा है? तूने मुझे कम से कम 5 क्वेश्चन पूछने हैं, नहीं तो वहां पे एक्शन लगा दूंगा जो कागज साहब घूम रहा है। फीलिंग, कॉन्टिन्यूस फीलिंग, लगातार सोच, ये कहां कन्वर्ट होगी बेटा? फीलिंग। थिंकिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू फीलिंग। हर सोच फीलिंग में नहीं कन्वर्ट होती। हम लाखों चीजें सोचते हैं, लाखों। हमारा कंप्यूटर इतना तेज है बेटा, इतना तेज है कि ये 24 घंटे काम करता है। जब हमें लगता है हम आज बहुत ज्यादा साउंड स्लीप सोए, तब भी हमें सवेरे कुछ ना कुछ सपना याद आ जाता है। मैं उसके थप्पड़ मार रहा था, उसने मुझे ठुक मारा, मैडम को मैंने बोला तू आ कॉलेज से बाहर न निकल, ऐसा ऐसा हो रहा था, है ना? क्योंकि ये थिंकिंग प्रोसेस बेटा ड्यूरिंग द स्लीप भी चलता है। लेकिन हर सोच फीलिंग में कन्वर्ट नहीं होती। मेरी सोच फीलिंग में कन्वर्ट होगी, लगातार सोचें ही फीलिंग में कन्वर्ट होंगी, और लगातार फीलिंग्स एक्शन में कन्वर्ट होगी। सो हमारे अंदर 3 चीजें काम कर रही हैं, खास ख्याल रख लो। माइंड इट टेक्स केयर ऑफ थिंकिंग। माइंड हमारा हार्डवेयर है और थिंकिंग सॉफ्टवेयर। हार्ट, मैं हार्ड यूज कर देता हूं, ये फीलिंग्स टेक केयर करता है। सो फीलिंग्स आर सॉफ्टवेयर एंड हार्ट इज हार्डवेयर। बॉडी हमारी काम करती है, काम क्या करती है? ये एक्शन लेती है। सो एक्शन इज सॉफ्टवेयर, बॉडी हार्ट। तो 3.5 चीजें काम कर रही हैं, माइंड, हार्ट, बॉडी। थॉट, फीलिंग, एक्शन। Thought converted into feeling, converted into action. The whole process is known as behavior. इधर उधर ना पढ़ना, कंफ्यूजन होना, ये सब्जेक्ट बहुत कंफ्यूज है। मैं अभी भी बहुत कंफ्यूज हूँ अपने सब्जेक्ट से। Very simple, in 2-3 lines. My process of thinking will be converted into feelings. लेकिन सिर्फ वही फीलिंग्स कन्वर्ट होंगी, वही थिंकिंग फीलिंग्स में कन्वर्ट होगी जो लगातार आएगी, जिसमें परसिस्टेंस बहुत है, लगातार फीलिंग्स मेरी एक्शन में कन्वर्ट होगी। इसको अगर आप उल्ट ले लें तो रोगर कहता है कि आप लोगों ने ये देखना है कि मेरे एक्शंस के पीछे कोई ना कोई फीलिंग हो, और मेरी फीलिंग के पीछे कोई ना कोई थॉट। एक्शन के पीछे कोई ना कोई फीलिंग, फीलिंग के पीछे कोई ना कोई थॉट। रोवर कहता है 70%, 60% वही सोचो जो फीलिंग में कन्वर्ट हो सकता है, वो मत सोचो बेकार है जो फीलिंग में कन्वर्ट ही नहीं हो सकता। आप अपने आप को टेस्ट करके देखना, किसी रात को सोने वक्त देखना आपने क्या क्या सोचा हो, उससे आपका कहीं दूर कोई लिंक नहीं। बट यू डोंट हैव द कंट्रोल ऑन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। सोच को पकड़ में लाओ। हमने 60-65-70% वही सोचना है जो फीलिंग में कन्वर्ट हो सके, वो सोचना बेकार है जो फीलिंग में कन्वर्ट ही नहीं हो सकता। 60-70% तो वो फील करना है जो एक्शन में कन्वर्ट हो सके। वो फीलिंग लानी बेकार है जो एक्शन में कन्वर्ट ही नहीं हो सकती। और जो मैक्सिमम सोचे फीलिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, मैक्सिमम फीलिंग्स एक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, they are considered as normal behavior human beings, and normal behavior human beings are the most successful human beings in the world. दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग कौन हुए हैं? जो नॉर्मल बिहेवियर में ज्यादा से ज्यादा जीते हैं। ज्यादा से ज्यादा जीते हैं मींस जो 70-75% नॉर्मल बिहेवियर में। एबनॉर्मल बिहेवियर में कौन है? हम सारे। हम सोचते कुछ के कुछ, हमारी फीलिंग कुछ की कुछ, हमारा एक्शन कुछ का कुछ। कभी भी चेक करना, ये आपके साथ हो रहा है। अभी मैं दावे से कहता हूं, अभी एक्शन क्या है आपका? आप क्लास में बैठे बिहेवियर के बारे में सुन रहे हो, जो कि बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है, क्योंकि डिबेटेबल है, लेकिन आपकी फीलिंग कहां जा रही है? यार ये
कुछ समोसा समोसा भी देंगे खीर में, कुछ चाय भी देंगे, तो मैंने फंड होंगे इनके पास के, शायद क्लास में ही कोई समोसा आ जाए, किसी को ठंड लग रही है, किसी को कुछ हो रही फीलिंग आ रही है। एक्शन क्या है? यू आर इन माई क्लास। सोच कहाँ जा रही है? थिंकिंग कहाँ जा रही है? अरे कब खत्म होगा ये, कहाँ ले गया आपको बिहेवियर में, हमने क्या करना, मसा तो शुरू हुई है बात, तो से किए जाते यू आर अनेबल टू कंट्रोल। आपकी सोच थॉट कहीं और, आपकी नहीं हम सबकी, इनकी ये क्या सोच रही है, अब प्रिंसिपल को क्या बताना है, क्या बोलना है, क्या कराया उसने, साइन कराए कि नहीं कराए, कागज आया कि नहीं आया, क्लास चलती रहे। प्लीज डोंट माइंड दिस, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, और ये बड़ी प्रैक्टिस के साथ बेटा होगा। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये भाषण देने नहीं आया मैं, ये सत्संग नहीं हो रहा कि बलवीर बाबा जी आए हुए हैं, ऐसा नहीं है बेटा, आपको ये प्रैक्टिस करनी है आज से। Whatever I am saying, you have to take to your thinking, then you take to your feeling, then you take to your action. Make the part of your behavior, it will become the part of your personality. जब तक आप नॉर्मल बिहेवियर में नहीं आएंगे, ज्यादा से ज्यादा वो नहीं सोचेंगे जो फीलिंग में कन्वर्ट हो जाए, ज्यादा से ज्यादा वो फील नहीं करेंगे जो एक्शन में कन्वर्ट हो जाए, सक्सेस बहुत दूर चले जाएगी। यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। एबनॉर्मल बिहेवियर के लोग कभी सक्सेसफुल नहीं होते। आर यू गेटिंग मी? मेरी बात समझ आ रही है? सो व्हाट इज बिहेवियर? बिहेवियर इज नथिंग, ए प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग कन्वर्टेड इनटू फीलिंग, फीलिंग कन्वर्टेड इनटू एक्शन। और इसको उल्टा ले लेंगे, my 70% actions are followed by feeling, my 70% feelings are followed by thinking process. मैंने वही एक्शन लेने हैं जिसके पीछे कोई फीलिंग है, वही फीलिंग्स लानी है जिसके पीछे कोई सोच है। मैंने मैक्सिमम वही सोचना जिसको मैं फीलिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ, वो सोचना बेकार है जो फीलिंग में जा ही नहीं सकता, और मैंने मैक्सिमम वही फील करना है जो एक्शन में ले जाए। दिस इज योर बिहेवियर। सो टुडेस टॉपिक इज एंटरप्रेन्योरशिप एटीट्यूड एंड। सर एक सवाल है, हाँ जी, ये आपको कैसे पता लगेगा कि जैसे मैं सोच रहा हूँ, हाँ, और ये मेरी फीलिंग बन चुकी है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट? ये मेरी फीलिंग हो गई है, मतलब मैं सोच रहा हूँ किसी चीज के ओके। जब मैं घर से चला ना तो मैं लेट हो गया तालों के चक्कर में। बुढ़े लोग ज्यादा घबराते हैं कि चोरी ना हो जाए, एक ताला चेक कर, दूसरा ताला चेक कर। तो मैंने घर में प्लान किया कि पानी पी लें। पानी की प्लानिंग मेरी घर की थी, पर मैंने देखा यार लेट हो रहा हूँ, मध्य मार्ग पे ट्रैफिक बहुत होगी, अब घर से निकलता बहुत कम हूँ, गाड़ी की प्रैक्टिस भी रही, मुझे लगता अभी ठुकी। फिर मैं चलता रहा तो मैं यहाँ रुक के पानी पीने लगा, मेरे को वैसी प्यास बड़ी लग रही थी। तो ये प्रोसेस कौन सा था? ये थिंकिंग प्रोसेस था। फिर मैंने कितनी देर लगा दी सोचने में, वो कॉन्टिन्यूस थिंकिंग किसमें कन्वर्ट हुई? फीलिंग। तो मेरा गला बंद हो रहा था, मुंह बंद हो रहा था। फिर मैंने उसको एक्शन में लाने की कन्वर्ट की। तो मैंने मैडम को क्या रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि एक गिलास पानी पिला दो और एक रख दो। मैंने रखने वाला भी पहले मंगा दिया, मैंने कहा इनको पीएन नहीं मिलना, पानी आ रहा नहीं तो मेरा सेशन खत्म हो जाना। लेकिन मेरे को नहीं पता ये एक नहीं हैंकी फैंकी हो चुकी है, बोतलें बांधे रखी हुई है। फिर जब मैं यहाँ बैठा तो बॉटल आई, तो सबसे पहले मैंने खोली और मैंने पूरी खत्म कर दी। तो ये प्रोसेस बेटा कैसे शुरू हुआ? पहले मैं सोच रहा था पानी पीना है, लगातार सोचता रहा ना, वो फीलिंग में कब कन्वर्ट हुआ? व्हेन इट स्टार्ट डिस्टर्बिंग माय फीलिंग्स। मेरे को इतनी मतलब वो भावना बीच में आ रही थी कि मेरे से बोलना, मेरी जीभ सुकरी, गला सुकरा, कुछ भी बोलो। Then I brought it into action. So with the practice of these things, you will be able to differentiate that it is at thinking process or it is at feeling process. But sometimes it mixes. Doesn't matter. हमने कोई बड़ा भारी परफेक्ट दुनिया का नहीं बनना, ठीक है ना? मैं सिर्फ ये मैसेज दे रहा हूँ कि आपने वही सोचना है जो फीलिंग में कन्वर्ट हो सके, वही फील करना है जो एक्शन में कन्वर्ट हो सके। इस प्रोसेस से अपनी जिंदगी को गुजारना है। डायरेक्ट एक्शन लेने की कोशिश नहीं करते, उसमें लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन लॉस की परसेंटेज ज्यादा है। डायरेक्ट फीलिंग्स नहीं लेनी। When we see the movies, there are so many rape cases. It is direct feeling. And 99% रेप केसेस में जो मैंने स्टडीज पढ़ी, मैं इनके साथ इन्वॉल्व रहा, 99 में से 90% पीपल एडमिटेड दैट दे हैव डन द मर्डर।
उन्होंने सिर मारा दीवार पे कि हमसे गलत हो गया, बिकॉज उस टाइम थिंकिंग प्रोसेस नहीं आया, सिर्फ फीलिंग आ गया। तो रोगर कहता है अपने आप को 3 प्रोसेस से गुजारो अगर तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो। थिंकिंग कन्वर्टेड इनटू फीलिंग, कन्वर्टेड इनटू एक्शन इज योर बिहेवियर इज योर पर्सनैलिटी। एंटरप्रेन्योरशिप, दिस कॉन्सेप्ट हैज कम अप फ्रॉम फ्रांस। फ्रांस ने लिया था, अगर हम इसकी हिस्ट्री ये त्र की आवाज निकालता, अंतर फ्रांस का कॉन्सेप्ट है। इन्होंने पहले एंटरप्रेन्योर की बात की, एंटरप्रेन्योरशिप की नहीं की, एंटरप्रेन्योर की बात की। एंड फ्रेंच पीपल यूज्ड दिस वर्ड फॉर द टफ पीपल, दोज हु वर वेरी टफ। लाइक फॉर एग्जांपल दे यूज दिस वर्ड फॉर द सोल्जर्स। सोल्जर्स के लिए यूज हुआ जो बगैर पानी के, बगैर खाने के 3-3, 4-4 दिन लड़ते। सो first message go to all of us who are there to opt for entrepreneurship या entrepreneurship की बात सोच रहे हैं कि entrepreneurship में people who are successful are mentally very tough। कई बारी हमारी हार क्यों हो जाती है? क्योंकि हमने इसको बड़ा आसान लिया। कई बारी हमारी सब्जेक्ट में नंबर कम आ जाते हैं, कंपार्टमेंट आ जाते हैं, तो जब हम अपने एनालिसिस देखते हैं तो हमें लगता है कि एक रीजन सबसे बड़ा क्या निकला था कि मैंने इसको बड़ा लाइट लिया कि 4 दिन में पढ़ लेंगे, 6 दिन में पढ़ लेंगे, लास्ट में पढ़ लेंगे, छुट्टियों में पढ़ लेंगे, लेकिन गड़बड़ हो। सो एंटरप्रेन्योरशिप में भी समटाइम्स पीपल टेक इट वेरी लाइट। सो द फर्स्ट मेसेज बिफोर स्टार्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप इज दैट इट इज यूज्ड फॉर द टफ पीपल। सो यू हैव टू बी टफ। There are 2 options before you when the tough situation comes. One is you leave the situation. ये सारी बड़ी टफ है, भाग जाओ। हमारे में से ज्यादा भागने वाले होते हैं कि नहीं? इतना उदास है यार। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? पक्की का? मेरा नाम सर बलबीर सिंह। देख ला, सर चतुराम भी होया एक। मैं उस लेटर हेड से लगा है गुरु गोबिंद कॉलेज हो कि मेरा नाम सर बलबीर सिंह है, इसे यूज करांगे। वो उत्तर पता लग रहा है? वेरी गुड। क्वेश्चन पूछना है फिर? मैंने पूछना है? नहीं पूछेगा? क्वेश्चन तो पूछेगा, क्वेश्चन ही नहीं आ जाए बात क्या होएगा कि नहीं? ये सेशन आज साढ़े चलाता क्या है, 2 दांत तक नहीं है। मैं तो ताज आऊंगा जब सारे चले जाएंगे, मैं तो वेला ही बहुत। So we have 2 situations. One, we become tough to face the tough situation. That is the real inherent of the successful people in the world. Because एक चीज बेटा तुझे ख्याल रखनी है, मैं तो काफी उम्र से बड़ा, मैं बहुत दुनिया देख ली क्योंकि मेरी पूरी जॉब रही। टफ टाइम नेवर गोज, टफ टाइम नेवर गोज। असं सोचते रहने हैं ना कि यार स्कूलिंग खत्म होएगी तो जान छूटेगी, कटियां लगी रहनियां, होमवर्क दिखाओ, कॉलेज आओ। कॉलेज कुछ नवे ही आप पे होंगे, कॉलेज खत्म होता है फिर हमें लगता है यूनिवर्सिटी जाएंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा, वहाँ कुछ और ही अब पड़ जाता है। फिर सोचते हैं ओहो जॉब लग गई, मजा ही आ गया, तनख्वाह मिलेगी। लेकिन जॉब में तो ऐसा लगता है कि खिसके नहीं तो पता नहीं क्या हो गया। 8 घंटे मैं पहला हफ्ता 85 में बैठ ही नहीं पाया। जब मैनेजर आता था मैं होता ही नहीं था, वो कहते हैं मिस्टर सिंह जिसने ज्वाइन किया होगा, मैंने उसको साफ बोला, मैं नहीं मैं 8 घंटे नहीं बैठ सकता, मुझे 10 दिन दे दो 8 घंटे बैठने के लिए, क्योंकि 8 घंटे तो मैं आज तक नहीं बैठा। फिर नौकरी के बाद फिर शादी हुई, बंदा सोचता है आसानी बड़ा हो जाएगा, बाजे मारेंगे, तोड़िया फड़ा, मीट फड़ा, ब्रेकफास्ट क्या रख जा रहा है, ठीक करता, नमक ज्यादा पाता, हट पाता, जितनी पढ़ाता उधर निकालो सारी। मैंने एक से पूछा, मैंने कहा लेडी भी आई है कि कुक भी आई है, ये देख ले, सवेरे से नमक ज्यादा नमक कम की बातें कर रहा है। शी इज कुक बट शी इज नॉट ओनली कुक। फिर आगे फैमिली बढ़ी, फिर at the end of 70% still is asking for what? Easy time, peaceful time. So Roger says tough time never goes. It is the tough people who do it. So tough time तो बेटा कहीं भी नहीं खत्म होगा, ना जॉब में, ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, ना entrepreneurship. You have to be tough if you want to be successful. Entrepreneurship 2 अक्षरों से अक्षर बना है, entrepreneur एंटरप्राइज, उद्यमता। एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमता कही जाती है हिंदी में, उद्यमी और उद्योग।
सो दे आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। अगर तुम्हें एक एंटरप्राइज लगाना है, एंटरप्राइज से मतलब हमने ये धोखा नहीं खाना कि हमने बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगानी है, बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी, जमीन लेंगे, मशीनें आएंगी। नो नो नो, एनीथिंग विच इज प्रोड्यूसिंग, इवन गवर्नमेंट सेड इट्स ए एंटरप्राइज, जो कुछ प्रोड्यूस कर रही है, नया बना के दे रही है, ऊपर से मसम्मी डाली, नीचे से जूस निकला, व्हाट इज इट? इट इज एंटरप्राइजेस, बिकॉज उसने उसको रीशेप कर दिया। रीशेपिंग द थिंग इज एंटरप्राइज। लकड़ी आई, उसको उसने गंदा गंदा मारा, सजाया, फिर किया, टेबल बन गई। कपड़ा आया, थानों का थान, उसको काटा और उसके सूट बन गए, उसकी मैक्सी बन गई, ये बन गया, वो बन गया। रीशेपिंग द थिंग्स। सो माइंड में ये नहीं रखना कि मैं एंटरप्राइज वर्ड यूज करूंगा तो आपको लगेगा कि यार बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी, बहुत बड़ी मशीनें होगी, तब बात होगी। नो नो, एंटरप्राइज इज वेन यू रीशेप थिंग्स। सो एंटरप्राइज एंड एंटरप्रेन्योर, दे आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। ये एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। मैं एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ, बिहेवियर से हम एटीट्यूड पे आ रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप एटीट्यूड क्या है, बिकॉज एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्राइज आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटररिलेटेड। क्या अर्थ है इसका? कि अगर मुझे एक एंटरप्राइज बनाना है तो मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, अगर मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है तो मुझे एंटरप्राइज लगाना ही लगाना है। मेरी एज ए एंटरप्रेन्योर क्या पहचान है? मेरा एंटरप्राइज। इफ आई एम डिक्लेयर्ड ए गुड टीचर, तो मेरे गुड टीचर की पहचान क्या है? गुड टीचिंग। अगर मैं गुड टीचिंग नहीं कर रहा तो मेरे को गुड टीचर तो कोई नहीं जाएगा। आर यू गेटिंग मी? सो एंटरप्रेन्योर और एंटरप्राइज दोनों मिलके एंटरप्रेन्योरशिप बनती है। सो दिमाग में से सिर्फ एंटरप्राइज निकालो, you have to become entrepreneur also, and I guarantee you are not a entrepreneur today. आज की डेट में आप एंटरप्रेन्योर उद्यमी नहीं हो। अगर आप उद्यमी होते तो आपका उद्योग होता। So I have to set up an enterprise which is the sole purpose and goal of this innovative cell and other कितना जोर लगा रहे हैं सारे academic institutions कि you should set up an enterprise. I am adding that you have to set up an enterprise, but you cannot set up an enterprise unless you become an entrepreneur. So entrepreneur थोड़े हटके होंगे हैं, डिफरेंट होंगे हैं, यूनिक होंगे हैं, अलग जो होंगे हैं। आम सोसाइटियां 35 तो 40% दी रेशो च लोग entrepreneur होंगे हैं। इंडिया या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज दे आर जस्ट 32-35%। लोग entrepreneurship में आते नहीं, बिकॉज हमारी फैमिलीज, हमारा कल्चर सिक्योरिटी बहुत ढूंढता है कि माई सन शुड बी सिक्योर, माई गर्ल शुड बी सिक्योर। एंटरप्रेन्योरशिप में वही सक्सेसफुल होगा जो अनसर्टेनिटी को फेस करेगा, क्लियर करेगा या फेस करेगा। ना ऐसे क्यों उठाया हुआ? मेरे को तो नहीं ऐसे मारना किसी। देख ले, कहां से है तू? यार इतनी दूर दूर से, रास्ते में कोई कॉलेज नहीं पढ़ा राजस्थान में आता? कौन सी जगह से राजस्थान में? हनुमान जंक्शन, हनुमानगढ़ जंक्शन, ये गंगानगर में आता है, डिस्ट्रिक्ट गंगानगर पड़ता है। ओह गुड गुड गुड। सो 32 to 35% entrepreneurs because we feel that we have to be secure. सिक्योरिटी हम चाहते हैं। आज आप नौकरी में देखो तो हर बंदा क्या चाहता है कि सरकारी नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले। 10-10 लाख, 15-15 लाख लोग रिश्वत दे देते हैं ये की पोस्ट पे, क्लर्क की पोस्ट पे। तो उसको पूछो कि यार तो 15 लाख रुपया दे रहा है क्लर्क की पोस्ट पे, वाई? वो कहता मेरे को सिक्योरिटी बहुत है। क्या सिक्योरिटी है? वो कहता काम करे ना करे तो हाथ चली जाएगी, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, जितने मेरे मर्जी आओ, जितने मेरे मर्जी जाओ। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंड में भी आधी तनख्वाह बन जाएगी। मतलब पूरी प्लानिंग होती है बंदों की। अदरवाइज इफ यू गो टू द वेरी डीप डाटा ऑफ जॉब्स इन गवर्नमेंट, एक सिंपल क्लर्क 12 से 15 साल बाद असिस्टेंट बनता है। आई हैव दैट। और उसको 20-22 साल लग जाते हैं सीनियर असिस्टेंट का, और उनमें से 10-15% है जो स्टूडेंट बनते हैं, और उनमें से 5% है जो असिस्टेंट डायरेक्टर या गजेटेड पोस्ट पे आते हैं। और स्टिल दे आर वेरी हाई, वेरी हाई।
साडा मुंडा की कर रहा है, साडा मुंडा गवर्नमेंट जॉब देगी, साडा मुंडा गवर्नमेंट जॉब देगी। जो प्राइवेट कॉलेज में काम करता है उसको उसके घर वाले को थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है कि ये बताएंगे कि ये तो प्राइवेट कॉलेज में, तो घर वाले साफ क्या बोल देते हैं कि नहीं है तो प्राइवेट कॉलेज, स्केल सारे गवर्नमेंट दे है, रूल सारे गवर्नमेंट दे है। मतलब वो सिक्योरिटी फील करते हैं कि यार गवर्नमेंट बोलने से हमारे को बड़ी सिक्योरिटी है। लेकिन कितनी ग्रोथ हुई, कितना मैंने राइज किया लाइफ में, कितना मैं डेवलप किया, दैट इज माइनस माइनस। साला वो भी भूल जाता जो उसको आता होगा, क्योंकि गवर्नमेंट सिस्टम को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। यू कैन नॉट डू ऑफ योर ओन इनोवेशन एंड क्रेडिबिलिटी इन गवर्नमेंट। साहब ने जैसे कह दिया वैसे ही करेगा। सो एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आई शुड बी एबल टू फेस द अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी को फेस करने का जिगरा कुछ नहीं होता बेटा। अगर आपका थोड़ा होता, मुझे पता नहीं ज्यादा, अगर थोड़ा होता भगवान में विश्वास है, ऊपर वाला है, तो उसने अगर तुम्हें यहां तक पहुंचा दिया ना तो उसने आगे भी पहुंचाया, वो आगे वही पहुंचाएगा। हमें डर लगता है क्योंकि अंधेरा हमारी सोच के आसपास। हमें लगता है फाइन दे दिया तो क्या हुआ, मैंने ये बोल दिया तो क्या हो गया, मुझे निकाल देंगे, मेरी रिपोर्ट खराब हो जाएगी, मेरे प्रिंसिपल मैनेजमेंट को बोल देंगे, इसको बोल देंगे, उसको बोल दो, क्या किसी को भी बोल दो। एक सोच को हमेशा अपने साथ रखो कि मुझे यहां तक पहुंचाने वाला भी पीछे से कोई है। एंड इफ यू से द रेशियो इट कैन बी 30 and 70% यू हैव बीन पुश्ड बाय समवन, 30% इट मे बी योर कंट्रीब्यूशन। तो जिसने यहां तक पहुंचा दिया वो आपको आगे भी ले जाएगा। सो एंटरप्रेन्योरशिप में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा रहेगी। कोई दुकानदार ये रात को नहीं सोच सकता कि सवेरे 4000 की सेल होगी कि 40000 की सेल होगी। एस्टिमेट होते हैं सर, कभी गला भरा होगा, कभी गला खुला होगा। So you have to be tough, you have to face uncertainty, but you will grow, you will develop, you will rise. 80 to 90% enterprises India में 80 to 90% they started with one small, बड़े छोटे से शुरू हुए। ये जो नजर आते हैं ना अपना अंकल चिप्स, कोका कोला, पेप्पा कोला, ये 3% है, 3 to 4%। इंडिया में एंटरप्राइजेस स्टार्टेड विद ए टाइम। सो हम सभी ये सोच के चलेंगे कि वी हैव टू स्टार्ट विद ए स्मॉल ही बिग बने, डायरेक्ट बिग सिर्फ 5% है। सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ए वेरी स्मॉल। एंड एंटरप्रेन्योरशिप की हिस्ट्री ये कहती है कि एंटरप्रेन्योरशिप में वो लोग सक्सेसफुल हुए हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज कन्वर्टेड इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मींस कि मैं जो भी करूं पहले अपने आप को एम्प्लॉयमेंट दूं, मैं अपना खर्चा निकालूं, अपने कपड़े, अपने ठहरने, अपने खाने का खर्चे का अरेंजमेंट करूं। सो मेरे लिए एंटरप्राइज इमीडिएटली क्या है, आई हैव टू कन्वर्ट माई सेल्फ इनटू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मैं उतना करूंगा जिससे मेरा रोज का खर्चा निकल जाए, मैं अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट ना रहूं। 18 साल से ऊपर वैसे भी आपको सोचना चाहिए कि यस नाउ आई शुड बी। हमारा कल्चर थोड़ा ऐसा ही टूट ही नहीं रहा कि 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल तक भी हमारी फादर के पैसे पे नजर रहती है, मदर के पैसे पे नजर रहती है। दे दो पापा जी, दे दो पापा जी, होता रहता है कि नहीं होता? तुसी भी करते हैं और तुसी बुढ़े हो गए, तुसी दे दो, मैं खर्च लंगा पड़ा करता हूँ। मेल फीमेल भी क्या करते हैं, शादी हो गई उसके बाद दे दो थोड़े से, फिर तो पहली राखी है, पहली दिवाली है, दे दो थोड़े से, पहला ये है, पहले के चक्कर में ही ना पता नहीं कितने लाख से आ जाते। देखो थिंकिंग प्रोसेस है और कुछ नहीं है। आई वॉज इन जर्मनी फॉर 11 days। वहाँ पे मैं, अब वो ईस्ट और वेस्ट जनवरी के वो खुल गए, गेट खोल दिए उन्होंने, तो मैं बिल्कुल बॉर्डर पे था, मेरा स्टे का रहने। मैं शाम को घूम रहा था तो वहाँ से जो ट्रक जा रहा था, वो लड़कियाँ चला रही, वो हाय करके जाए। मैंने भी कलर ठीक किया, बड़े सारा बात किसने हाई किया। मैंने उसको गार्डनर को पूछा वैसे, एंड दे आर वेरी पोसेसिव अबाउट देयर लैंग्वेज, दे हेट इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज। जर्मन में बात कर सकते तो करो, नहीं तो छुट्टी। रेस्टोरेंट में भी कुछ नहीं समझ आता, कहीं कुछ नहीं समझ आता। एंड दिस इज अ मैसेज टू ऑल ऑफ अस, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर पंजाबी एंड हिंदी। हमें शर्म आती है ना बोलते हुए,
खासकर पंजाबी बोलते हैं कि नहीं शर्म आती है, लगता बड़ी वल्गर जी है, वल्गर नहीं है, इट्स वेरी गुड लैंग्वेज। जब उसको सवाल है कि पहला कोई बोर्ड मैंने अंग्रेजी में देखा हो, अंदाजा लगाता था मैं कि ये इस चीज़ की दुकान होगी, ये इसकी होगी। मैंने उसको गार्डनर को जैसे जैसे टूटी फूटी में समझाया कि ये कौन है, कहता है यूनिवर्सिटी की लड़की है। मैं कहीं कहाँ जा रही है, कहता ये ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी जा रही है। तो ये जो लंबे लंबे ट्रक हमारे यहाँ चलते हैं, जो गाड़ियों में गाड़ियाँ आती हैं, वो जा रहे हैं, तो ये दे आर हाईएस्ट पेड। तो इनको 1000 यूरो एक फेरे का लगता है, और ये हफ्ते में 4-4 फेरे लगाती हैं। मैं क्या वाई, कहता अब इनको छुट्टियाँ हैं, तो छुट्टियों में ये इतने पैसे कमाती हैं कि आने वाले सेशन में इनकी फीस निकल जाए, किताबें निकल जाए, कपड़े निकल जाए और इनके खर्चे निकल जाए। मैं क्या व्हाट अबाउट द पेरेंट्स, कहता यहाँ बहुत ज़्यादा शर्म आनी जाती है 18 साल के बाद अगर कोई लड़की अपने पेरेंट्स से पैसे मांगे। बेटा ये सिर्फ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है, सिर्फ पार्ट ऑफ बिलीफ है, इसमें किसी ने कुछ नहीं करना, ये तुम्हारी सोच है, तुम्हें खुद बदलनी पड़ेगी। तुम ना बदलो तो ना बदलो, बदलो तो बदलो। वो कहता है कि पेरेंट्स दे आर वेरी रिच बट दे फील सो एम्प्रेस्ड, बड़ी शर्म फील करती हैं। और अगर लड़कियों को ये पता लग जाए, किसी लड़कियों को कि इस लड़की ने अपने पेरेंट्स से पैसे मंगाए हैं, तो उसको ग्रुप से निकाल देते हैं। मैंने 2 मिनट के लिए सोचा, मैंने कहा अगर ये रूल हिंदुस्तान में अप्लाई हो गया, सारी लड़कियां ग्रुप से बाहर। हमारा तो आप भी ऐसे रहता है। पेरेंट्स को तो हमने क्या बना दिया बेटा, हमने उनको एटीएम मशीन बना दिया, पापा इतने अकाउंट में डाल दो, इतने डाल दो, डाल दिए, जल्दी करो ना, इतनी देर लगती है डालते, ऊपर से हम डंडा देते हैं माँ बाप। वो पैसे जैसे ही डले तैसे ही हमने कार्ड अंदर डाल दिया, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि काफी साल तक चलता रहे, पैसे आते रहे अकाउंट में और मैं एटीएम से निकालता रहूं। दे आर ऑल्सो द पीपल इन द वर्ल्ड। किसने कहा उनको, किसी ने, ये उनकी सोच थी। सोच फीलिंग में कन्वर्ट हुई, एक्शन में कन्वर्ट हुई, उनका बिहेवियर बन गया, और कॉन्टिन्यूस बिहेवियर जो होता है वो हैबिट बन जाता है, और कॉन्टिन्यूस हैबिट्स जो है वो वहाँ का कल्चर बन जाता है। कल्चर इज नथिंग, इट्स ए कॉन्टिन्यूस आउटपुट ऑफ द हैबिट्स। हैबिट्स आर नथिंग, इट्स ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ योर बिहेवियर। जो आप लगातार कर रहे हैं उसको लोग हैबिट कहेंगे, जो तुम सारे लगातार करोगे उसको लोग कल्चर कहेंगे। आर यू गेटिंग मी? सो अभी से हमको सोचना है कि सबसे पहले मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे किसी तरह आ जाऊँ। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपना खर्चा निकालना शुरू करूँ, जैसे तैसे शुरू करूँ, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। Good education will give me good job. एजुकेशन में हमारे दिमाग में एक चीज बहुत बड़ी रहती है कि हम कौन सी एजुकेशन लें? गुड एजुकेशन। क्यों? क्योंकि हमारे और हमारे पेरेंट्स की सोच में क्या है कि गुड एजुकेशन विल गिव मी। प्रैक्टिकली ऐसा देखा, ऐसा है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एकेडमिक्स में क्या है? PhD। देयर आर 49, कितने? 49 PhDs who are working on contract at the rate of 18,000 in various senior model schools in UT administration। साला इससे ज्यादा तो नहीं कोई पढ़ेगा वो। मैंने ब्राड के साथ बड़ा काम किया था डायरेक्ट एजुकेशन पे। 49 लेक्चरर्स 10-10 साल से बैठे हैं, 15-15 साल से। और अब पीछे DPI ने नोटिफिकेशन दे दी थी कि हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं लेकिन हम तो नए रहेंगे। फिर बड़ा दंगा फसाद हुआ तो उन्होंने उसको रोका। गुड एजुकेशन विल कन्वर्ट मी टू गुड जॉब। ये अब बेटा आउटडेटेड हो गया, इसको दिमाग से निकाल दो। यू हैव टू हैव द क्वालिफिकेशन। आई एम नॉट सेइंग कि आप पढ़ो ना, लेकिन आप एक मिनिमम क्वालिफिकेशन पे काम करो। देन यू स्टार्ट फॉर सम एम्प्लॉयमेंट, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दैट यू मस्ट स्टार्ट अर्निंग। आप कोई भी एजुकेशन ले लो, अल्टीमेटली आपने क्या करना है? You have to earn and you have to live your life। ये नहीं बेटा, and for you it's very very important because one earner is now totally unsuccessful in life। एक में खर्चे नहीं निकल रहे, ऐसे ही जा रहे हैं। So good education will give me good job
ये एक मिथ हो गई है, इसमें से बाहर निकलो, क्योंकि हमारे दिमाग में पड़ा रहता है बीकॉम की थी, चलो एमकॉम कर रहा है, एमफिल कर रहा है। मेरे को भी यही भूत स्वार था, लेकिन मुझे किसी ने नहीं समझाया, मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने एमए कर ली, एमफिल कर ली, एमबीए कर ली, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया काउंसलिंग और बिहेवियर मॉडिफिकेशन में। यूएसए में जाके मैंने अपने पिताजी के 60 लाख रुपए लगा दिए, ठहरना खाना पीना फीस। अल्टीमेटली फिर जॉब में आया। Are you getting me? मैं क्या कर रहा हूँ? So 2 साल 1.5 साल का बच्चा वो फाइनली अपने लाइफ में अमीर बनना चाहता है। 1% लोग ऐसे नहीं है जो ये मान जाएं कि हम अमीर नहीं बनना चाहते। यहाँ भी हाथ खड़ा कर दो जो अमीर नहीं बनना चाहते। ऐसा नहीं है। वेरी गुड। सिंपल के लिए भी अमीर होना पड़ेगा। वो यार तवे का पराठा 20 रुपए का, वो खाएगा 40 निकल गए, 20 रुपए की चाय हो गई है, 60 तो तेरे रास्ते में निकल गए। तो सिंपल कहाँ रह गया तू? फिर कॉम्प्लिकेटेड हो गया पुत्र। और नहीं जगला है तो मैं तो जानना नहीं खाएगा, जाएगा दुनिया अपना जाएगा तो पंगे ना रहा है। ये इस उम्र में एक स्वाद होता थोड़ा थोड़ा। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरा मैसेज समझ लेना। एग्जाम्पल को छोड़ो, 2-2.5 साल का बच्चा ना, 2-2.5 साल का बच्चा, उसको माँ खींच के ले जा रही होती है, तो एक बड़ी सी गाड़ी ना कीचड़ फेंक के उसके पे जाती है सारा, तो बच्चे की सोच क्या आती है? जिंदगी में ऐसी गाड़ी एक बारी जरूर होगी। If you read the child psychology, they are 5 to 10 years ahead of their age. हम घर में कोई हरकत करते हैं तो हम क्या सोचते हैं, बच्चा इसको क्या पता, बच्चा उसको सब पता होता, तुम क्या करते हैं, क्योंकि वो 5 साल वाला ना 12 साल की सोच का होता है। जब वो 2 कनाल की कोठी से ऐसे क्रॉस करता तो ऐसे क्रॉस करता, ऐसे क्रॉस करता है, तो उसकी सोच उस समय क्या कह रही होती है कि जिंदगी में इतना बड़ा घर। So let's accept this large jacket man that we want to become rich. Let's accept it. ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। Now how to become rich? 90% people says that good education will give me good job, and by good job we will become rich. ऐसा है? ऐसा है? मेरे को कोई लंबी गाड़ी नहीं नजर आई पार्किंग में। बेचारे अपने 3 साल से लगे पड़े, आधों के लोन ही नहीं उतरे, आधों की किस्तें चल रही है, फंसे पे हैं सारे। नहीं सर, आधी आज स्ट्राइक पे गई हुई है। Very good. So let's see the history of rich people. देखो एक किताब है क्रिएशन ऑफ वेल्थ, नोट करो, लिखो कहीं, क्रिएशन ऑफ वेल्थ जरूर पढ़ना, आपकी लाइब्रेरी में होगी, कॉमन सी किताब है क्रिएशन ऑफ वेल्थ। ओके, आई हैव 50 मिनट्स हो जाए। क्रिएशन ऑफ वेल्थ रिटन बाय R.M. लाला। R.M. लाला ने बेटा लिखी है क्रिएशन ऑफ वेल्थ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ टॉप ਦੇ 70 दुनिया, मैं इंडिया पंजाब की गल नहीं कर रहा, दुनिया के टॉप के 70 अमीर लोगों की इतिहास लिखे हैं, उनकी बायोग्राफी लिखी है। ओके, उनके बारे में लिखा है। उन 70 में से एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो 10वीं से ऊपर पढ़ा। Let me think seriously. Why I am so crazy to increase the degrees and academics? I don't say कि आप पढ़ना बंद कर दो. Don't take other way. You have to study minimum. थोड़ी सेंस आ जाएगी, अच्छे सिटीजन बन जाओगे, डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाएगी। लेकिन मैंने देखा बहुत क्राउड ऐसा है जिसको ये क्रेज है, अब ये कर लेता हूँ, अब ये कर लेता हूँ, दोपहर को ये कर लेता हूँ, डिस्टेंस एजुकेशन से ये कर लेता हूँ, शाम को ये कर लेता हूँ। पहले इंजीनियरिंग का दौर चला था, पंजाब में 150 इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, जो मोड़ काटो इंजीनियरिंग कॉलेज आ जाए कि नहीं। फिर एमबीए का दौर चला, हर दूसरा एमबीए। हमारा बेड वाला 3 दिन नहीं आया, एक दिन आ गया सवेरे। वो मैं कहता तू 3 दिन से नहीं आया, कहाँ था? कहता जी शाम को नहीं मैं आऊंगा। मैं कहा क्यों? कहता हम एमबीए करत ही। मैं क्या कहाँ से करत ही? कहना वो पत्राचार से, उसने पत्राचार बोल दिया, हिंदी में कर रहा है एमबीए। मतलब ब्रेड बेचेगा या एमबीए करेगा, एमबीए के बाद वो क्या सोच रहा है, मैं कहाँ आऊंगा, मैं कितना अमीर हो जाऊंगा, मेरे को कितना पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन हमें अपनी लाइफ में करनी है बेटा, करनी है। प्रोस्पेक्टिव्स एंड रेट्रोस्पेक्टिव्स ऑफ लाइफ।
क्या क्या खो रहे हैं, क्या क्या पा रहे हैं, किससे क्या खोएंगे, किससे क्या पाएंगे। सो क्रिएशन ऑफ वेल्थ ये कहती है कि सब लोग, दुनिया के सबसे अमीर लोग, नन वाज मोर देन 10। सो कुछ और रास्ता है रिच बनने का। इफ वी गो टू द हिस्ट्री ऑफ रिच पीपल, एजुकेशन इज इक्वल टू गुड जॉब, इस मिथ में से बेटा आप सबने बाहर आना है। द रिचेस्ट पीपल डिड नॉट गेट रिच बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशन। दुनिया के जितने लाले, जितने अमीर है ना, मध्य मार्ग पे सारों को मिलकर देख लो, कोई 11 में निकलेगा, कोई 12 में मिलेगा, पीएचडी भी मिलेगा आपको। जी मैं पीएचडी हूँ, लोहे का काम कर। तीसरी जनरेशन अब आ रही है जो जबरदस्ती बैठने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदरों अंदर उसने कनाडा भागने ही भागना। किरण मजूदार शाह, शी सिंपली बीएससी, इसका इंडियन असिस्टेंट था एक्साइज एंड टैक्सेशन। सारा दिन ये बोर होती थी। पहले एक घी आता था डालडा, डालडे के डब्बों में ये छोटे छोटे प्लांट्स लगाती थी। प्लांट्स बढ़ते गए, इसमें मल्टीफेरियस लगाने शुरू हुए। किसी ने सजेस्ट कर दिया हमारे जैसे कि एग्रीकल्चर में ले जाए, वहाँ इसकी बड़ी फ्री हुई और इसको ऑर्डर मिले। करते करते ये कैंसर के मेन सीड्स से प्लांट्स उगाने लगी। 1500 करोड़ की इसकी टर्नओवर। आई हैव मेट हर, इसीलिए मैं इतने जोर से बता रहा हूँ। मैं एक सेमिनार में गया था, वहाँ जिसमें लिखा हुआ था किरण मजूदार फॉर 15 मिनट्स। तो मैंने टी ब्रेक में पूछा कि किरण मजूदार कौन सी है, वो कहते नीली साड़ी का। तो मैं इसको मिलने गया। इसको 3 यूनिवर्सिटियों ने ऑनरेडी डिग्री दी है, अदरवाइज शी इज सिंपली 1500 करोड़ की टर्नओवर है। 9 महीने अमेरिका रहती है, 3 महीने इंडिया में रहती है। स्वीट भाटिया को जानते हो? उधर देखो, स्वीट भाटिया को जानते हो? एनीबॉडी नोज अबाउट स्वीट भाटिया? और फिर यार बोल रहा फिर खोल के, तो 5 मिनट आगे बैठा, खोल जा, सेल खोल जा। हाँ की हॉटलाइन की है सी राइट थी, फिर बेची थी। कितने की बेची थी? जितनी फिगर बताएगा उतना रुपए लेके जाऊंगा ना, हुए तो एटीएम से निकालूंगा, मेरे पास भी कार्ड है। ठीक ठाक जवानी बड़ी पानी निकलती है साड़ी ऊपर चाके, बड़ा पछतावा है। फिर 500-700 करोड़ के रुपया पे यार तू। $500 बिलियन में इतने हॉटमेल बेटा बेची थी। He is the second, third richest Indian in America. स्वीट भाटिया। मैं वो नहीं बताना चाहता, जो मैं बताना चाहता हूँ वो मैसेज मेरे से ले लो, सोचना कि यार ये क्या बोल रही है। जो मैं इधर उधर की कर रहा हूँ ना, उसको यही थूक के जाना है। जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है ना, समरी है, उसको साथ ले जाओ। स्वीट भाटिया इज क्लास 3rd आर्ट्स ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। साला हमारे घर में कोई ग्रेजुएशन ना कराए, या ग्रेजुएशन भी करनी, ग्रेजुएशन ही करनी, आर्ट्स ग्रेजुएट है ये स्वीट भाटिया, 2nd 3rd रिचेस्ट इन अमेरिका। इज टिपिकल इंडियन। मैं क्या मैसेज दे रहा हूँ, कि वी हैव टू बिकम रिच, लेट्स लुक फॉर ए पाथ एंड रोड। जब रास्ता ही नहीं पता गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज का, तो फिर मैं बिखर जाऊंगा ना। कोई कहेगा सज्जे जाके खब्बे हो जाना, कोई कहेगा खब्बे जाके सज्जे हो जाना। मुझे यही नहीं याद रहेगा कि कौन सा सज्जे से खब्बे हो, फिर मैं वही रोड मारता रहूँ। Let me make my road very clear. I have to become rich. Let me see the which road goes to become the rich. Is it education? Is it degrees? What else? Vinod Gupta is a 10th pass. He is a steel man of India. इसकी हाईएस्ट टर्नओवर है इंडिया में स्टील की। माइकल जॉर्डन, मैडोना, चलो इनको छोड़ो। बिल गेट्स का नाम सुना? कौन है ये? बता बड़े बोल दो। कौन है ये? माइक्रोसॉफ्ट क्या? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। आगे यस सर नो में जिंदगी बताओ। आई नो यस, व्हेन आई से यस देन आई हैव द conceptual clarity. Otherwise I will love to say no, I don't know. तीर तुक्कों से थोड़ा टाइम निकलता, जिंदगी नहीं कटेगी। ये मेरी एडवाइस है आपको, तीर तुक्कों से जिंदगी नहीं कटेगी। बिल गेट्स कौन है? क्वेश्चन वही रखता हूँ। फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। वेरी इंडिया आपको बहुत पसंद करता है, इंडिया में ग्रांट बड़ी देता है। He is the only richest man जिसका अपना पर्सनल एयरप्लेन नहीं है।
टीचर्स मैन ऑफ द वर्ल्ड आप मला कितना मला यार मरा क्या ओपीडी बैठा हो जी अमेरिका में जहाँ जमीन इसको खाली मिलती है सबसे पहले जमीन खरीद लेता आधा अमेरिका हो चुका बिल गेट्स का ये छोड़ो ये मसाला होता है सिर्फ मॉरल ऑफ स्टोरी पे आ जाते हैं बिल गेट्स की क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बताना मेरे पास है सिर्फ 25 पेज में बिल गेट्स की क्वालिफिकेशन बिकॉज मैं बात क्वालिफिकेशन पे कर रहा हूँ हाँ जी सर Sir, his qualification is a Harvard dropout, and he also attended one of the hardest courses in Harvard, Maths 55. But he dropped out because he thought that वो ज़्यादा achieve कर सकता है. तो आज के सेशन के बाद मेरा ह्यूमर भी फलाना है सलादी आए थे वो हार्वर्ड के ड्रॉप आउट है ड्रॉप आउट की कौन सी लिस्ट है जिसका मर्जी ह्यूमर फलाओ एनीबॉडी एल्स बिल गेट्स ध्यान से सुन लेना और अपने आप रात को बिल गेट्स से तुलना करें और अखीर में शीशे के सामने खड़े होकर ये पूछना कि व्हाई नॉट मी मैं क्यों बिकॉज मैं इस क्लास में जो भी बैठा होगा वो बिल गेट्स से 10 टाइम्स बेटर चाइल्डहुड का और यूज का बिल गेट्स never been to any school never been to any school please read his book known as software to success लिख लो software to success हरे से रंग की है $4-5 ग्रीन कलर की सॉफ्टवेयर टू सक्सेस थोड़ा इधर उधर पढ़ते रहा करो तभी जिंदगी कटेगी नाक की सीध में मत काम करो सॉफ्टवेयर टू सक्सेस रिटन बाय बिल गेट्स उसने अपनी सारी जिंदगी के बारे में इस किताब में लिखा है और इसी किताब में उसने हाईलाइट किया कि बिल गेट्स नेवर बीन टू एनी स्कूल he started his career as a newspaper vendor अखबार बेचते ना सिंह साहब जेड़े से इन्हें तो कैरियर शुरू किया 3 साल अखबार बेचता है हिट ऑफ ट्रायल से इसने अंग्रेजी सीखी सुन के सीखी और देख के लिखनी शुरू नाउ ही इज द richest person of the world इतना तो सेल्फ वर्ड देन आई मस्ट आस्क व्हाई नॉट मी मैं तो साला ग्रेजुएट होना ना 15 क्लास में उसको गया मेरी डिसीजन मेकिंग ज्यादा शार्प होगी मैनू गुड बैड का ज्यादा पता है मैनू लोग ज्यादा एनालाइज करते हैं मैं ज्यादा सोसाइटी में अपने आप को प्रेजेंट कर सकता अनलेस एक बंदा जेड़ा स्कूल ही नहीं गया आई एम नॉट यूजिंग द टर्म इलिटरेट इट गिव्स ए नॉनसेंस टू मिस्टर बिल गेट्स दैट्स व्हाई आई यूज्ड कि ही नेवर बीन टू स्कूल मैंने ये नहीं कहा कि वो इलिटरेट तो साला वो कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते जो लोग ये सवाल अपने आप को पूछ लेंगे वो बहुत आगे निकल जाएंगे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये सवाल अपने आप को जरूर पूछें सो एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल की बात हो रही है नीड ऑफ द टाइम देयर विल नेवर बी एनफ जॉब्स फॉर एवरीबॉडी एंड देयर विल ऑलवेज बी मोर जॉब सीकर्स देन जॉब जो लोग दिमागी तौर से तैयार हैं नौकरी 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 हमने करनी नौकरी है वो इस स्लाइड को दोबारा पढ़ कि कभी भी देयर विल नेवर बी एनफ जॉब बहुत हाई बेटा कंपटीशन होगा मैं तुम्हें डराने नहीं आया लेकिन हकीकत से भी वाकफ होना चाहिए क्यों ब्रदर ठीक है कि नहीं सच्चाई तू तो फेस करना चाहिए सो एवरीबॉडी देयर विल ऑलवेज बी ए मोर जॉब सीकर्स दैन रेलवेज में 2019 में 297 पोस्टें निकली थी उसके कितने लोगों ने अप्लाई किया था कोई हाथ खड़ा करेगा ये सिर्फ मैं इसलिए कहा बेटा कि हम इसी स्टेज पे तो रियलाइज करना है कि ऐसा हो रहा दुनिया में यार कि हा हा ही किया समोसा मट्ठी खाए और चले 3 करोड़ का एस्टिमेट में लगा कितना 5 से 10 लाख सर 25 से 30 लाख के करीब कितने 25 6,97,000 एप्लीकेशन रेलवे के पास आई थी जिसके लिए उनको 17 बंदे फाइट करने पड़े जो एप्लीकेशनों को भरते थे कंप्यूटर लेकिन सोना के चक्कर में वो इंटरव्यू नहीं होता हमारी कंट्री में ये स्टेज है एंड इट इज नॉट इन अवर कंट्री
It's a whole film. I was in US for 2 months, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हाँ 3 महीने में वहाँ सबसे ज़्यादा बुरा हाल है। लॉस एंजल्स की आउटस्कर्ट्स पे 8 बजे के बाद चलना डर लगता है क्योंकि जेब काट लेगा तो पकड़ के बैठेगा, साढ़े दिखने आएगा। हमें यहाँ लगता है कि यहाँ ऐसा है, इसको 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, वहाँ वैसा है। हमें वैसे यहाँ से बैठ के लगता है वहाँ बड़ा अच्छा है, कुछ नहीं है ऐसा। So one of the story of this slide is what? There will never be enough jobs. That means we have to compete. When we have to compete, then why not to compete in the business? Why not to compete in my own work? वहाँ भी तो competition है। और एक कारण हमारा अपना काम ना शुरू करने का ये भी है कि हमें लगता है competition बहुत है। तो उससे कहीं ज़्यादा बेटा competition IS में total post में 910 है। तो 4 लाख पहले आते हैं, प्रिलिमिनरी के बाद 2 लाख रह जाते हैं, मेन के बाद 1 लाख आ जाता है, करते करते इंटरव्यू मेडिकल में जाके 900 बन जाते हैं। आर यू गेटिंग मी? आपको ये बात समझ आ रही है कि नहीं? सो गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट और प्राइवेट सेक्टर हैज लिमिटेड पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंटाइजेशन। पोटेंशियल क्या होगा? व्हाट इज पोटेंशियल? क्षमता। पोटेंशियल वर्ड निकला पोटेंट से, POTENT। पोटेंट होता है इफेक्टिव फोर्स। सोसाइटी में वो इफेक्टिव फोर्स ही नहीं है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। सो ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी चली जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी, अब आम आदमी आ गई, अब खास आदमी आ जाएगी, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज वेरी लेस। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही नहीं होगा, कट पे कट कर रहे हैं। 15 दिन पहले गूगल ने कितने लोगों को भेजा था अंदाजा? 12,000 लोगों को भेजा गूगल ने घर। कैसे भेजा? तुम्हें भेजते तो यहाँ एम्बुलेंसों की लाइन लग जानी थी, तुमने तो सारों में फेट हो जाना था। You know the methodology Google applied? When they came for their attendance in the morning, they were stopped by the security officers. कहते क्या हुआ? कहते हमें ऑर्डर दे दिया, आप इससे आगे नहीं जा सकते, आप वेट करो वेटिंग रूम। जो उस दिन के आए हुए, उसके 1 घंटे के बाद उनकी बैलेंस चलती और उनके डिलीवरी लेटर उनके हाथ में जाती। हमें लगता था यहाँ क्या हो गया, यहाँ तो फिर भी हम बैंड बाजा बजा के बंदे को रिटायर करते हैं, वहाँ 43 डेज पड़ता बंदा एयरपोर्ट पे देता। सो लेट्स स्टार्ट लविंग अवरसेल्फ। अपने आप को प्यार करना शुरू करो। और मेरा अंदाजा तुम्हारे में से 80% लोग 90% टाइम अपने और अपने सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं। मत करो, बिकॉज यू हैव नॉट सीन द अदर सिस्टम। आपके रंग उड़ जाएंगे। मैं घूमने में गया था जब, तो बिस्टर गैलरी में घूम रहा था, एक ओल्ड लेडी ने पूछा कि व्हाट यू वांट बिस्टर थिंग। मैं कहा आई वांट टू हैव ए राउंड। कहती बिकॉज ऑफ प्रोग्राम वी हैव स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स, नो बिस्टर विल एंटर। मैं कहा डू सम फेवर टू मी। कहती नो मींस नो, यू विल गो और आई शुड कॉल द स्क्रिप्ट। ऐसा बहुत है। गेटिंग भी मेरी बात समझ आ रही है? हमारा कल्चर, हमारी हैबिट्स, हमारी वैल्यूज अभी भी बहुत बेटर है, तुम लोगों ने मेंटेन किया। सो एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल नहीं है। जब पोटेंशियल ही नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर क्रिएट ही नहीं। सो जॉब्स क्रिएट ही नहीं होंगी। इस चीज को अपने दिमाग में लेके चलो। अगर एक लेक्चरर 25 साल में आ गया, ठीक है, 60 साल में रिटायर होगा, तो कितने साल तक उसके लिए उसने पोस्ट को पकड़ लिया? ये बाकी या तो प्रिंसिपल बाई रोटेशन बनते हैं, वो तो ठीक है। जो 50 साल में प्रिंसिपल आ गया, 10 साल के लिए आ गया, बाकी टीचर क्या कहते हैं कि कोई चॉइस नहीं, या तो ये या इसके अंदर काम करो कि नहीं। मैं जब वाइस प्रेसिडेंट बना था तो एक पोस्ट थी। मैं जब वाइस प्रेसिडेंट बना तो हो गया सारा पार्टी पुटी, सारा कुछ हो गया। मैं उस टाइम आई वाज 54। तो मेरे बिल्कुल नीचे सीनियर जनरल मैनेजर होते थे, वो सारे इकट्ठे खाना खाते थे, मेरे को वहीं दे जाता था। मैंने कहा वहाँ ही मेरे को यहाँ क्यों देते हो? कहते जी स्टाफ ने कहा कि उनके सामने खुल के बात नहीं होती। मैं कहा खुल के कर लो तुम, पहले मैं यहीं खा लूँगा, कोई बात नहीं। तो मेरे को उड़ती उड़ती बात ये सुनी
कि बंदे इस चीज से बहुत कोस रहे हैं और रो रहे हैं कि यार एक पोस्ट है, ये 6 साल है, हो सकता है एक्सटेंशन ही मिल जाए, ਇਹਦਾ मतलब यार ਅਸੀਂ ਤਾਂ वाइस प्रेसिडेंट मान ही नहीं सकते। फिर सारों ने कहा यार कोई तरीका क्या है, कैसे बने वो खाली कैसे हुए, कहते कोई ऐसा तरीका हो गुरवीर सिंह तभी पोस्ट खाली होगी, नहीं तो होगी। अरे जेटिंग में मैं क्या कहना चाहता हूँ, स्टैग्नेशन बड़ी हाई लेवल है, ये दिमाग में फतूर होता है, वो फतूर जिसका निकल जाता है वो 2-3 साल धक्के खा लेता है, वो बहुत आगे ग्रो करता है, डेवलप करता है, राइज करता है। बिकॉज देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है, यू वांट टू लिव ए लाइफ or you want to live a good life, or you want to live a best life, or you want to live a excellent life, ये तुम्हारा डिसीजन, तुमने देखना। और गुजारे वाली बात ना किया करो, पहुंचने वाली बात ना किया करो। 10 रुपए का ऑटो देके ऑटो में पहुंच जाएंगे गुरु गोविंद सिंह कॉलेज, ऐसे ऐसे करते हो, इधर भी धक्का लग रहा है, इधर भी लग रहा है, फिर चलते चलते उसको 10 रुपए पकड़ाएंगे, ये पकड़, और जो मर्सिडीज पे आ रहा है फर्क होगा कि नहीं होगा। आई एम एबल टू रियलाइज दैट देयर इज सम डिफरेंस हु इज कमिंग बाय ए शेयर ऑटो एंड हु इज कमिंग बाय ए मर्सिडीज। लेकिन कुछ लोगों की सोच ये कहती है कि पर्पस तो सिर्फ गुरु गोविंद सिंह कॉलेज पहुंचने का, ऑटो वाला भी पहुंच गया, मर्सिडीज वाला भी पहुंच गया। अगर यही सोच रहती तो दुनिया में मर्सिडीज और ओडीज आती। मैं तो इस चीज से बहुत कन्फ्यूज कि यू हैव टू इम्प्रूव, यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू हैव द सक्सेस टिल यू आर कन्वर्टेड, जब तक इंफॉर्मेशन दे, एंड हैव ए गोल ऑफ लिविंग द एक्सीलेंट लाइफ। अगर एक्सीलेंट गोल होगा तो कम से कम बेस्ट या बेटर लाइफ जी लो। अगर गोल ही सिर्फ जीने का है तो फिर तो सिर्फ जिए। आर यू गेटिंग मी? मेरी बात समझ आ रही है? सो ये चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ये एंटरप्रेन्योरशिप के साथ कहाँ से जुड़ी हैं? ये सारी चीजें तुम्हें एंटरप्रेन्योरशिप में मिली। देखो लुधियाना में 154 इंपोर्टेड गाड़ियां हैं। आरटीओ से जो हमने डाटा लिया उससे ये पता लगा कि देयर इज नॉट इवन ए सिंगल कार ओन्ड बाय ए जॉब मैन। 154 इंपोर्टेड गाड़ियां बिजनेसमैन की है, वो भी एक तरह एक दिन आपकी तरह बिजनेस की बातें सुन रहे थे, बिजनेस का आइडिया बना रहे थे और धीरे धीरे बिजनेस करना शुरू कर रहे थे और करते करते वो वहां पहुंचे। सो देयर इज ए मिसमैच बिटवीन काइंड ऑफ जॉब्स एंड टाइप्स ऑफ अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज। क्योंकि आपकी जॉब और आपकी एजुकेशन में अब मिसमैच होगा, क्योंकि अब माहौल कौन सा आ गया, मरते क्या ना करते। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बेगर्स आर नेवर चूजर्स। फिर तो तुम्हारे माँ बाप और तुम कहेंगे जो मिलती है नौकरी मिल जाए। मुझे परसों एक बंदा मिला, मैं क्या बेटा होगी भी नहीं, कहता हाँ जी होगी अंकल मेरी जॉब लगी। मैं क्या वेरी गुड, कितने? कहता HDFC। मुझको बड़ा चक्कर आने लगा, मैंने कहा बैठ जाऊँ, चक्कर आ रहा था। तो मैं क्या बेटा यू आर मैकेनिकल इंजीनियर तू HDFC। वो कहता अंकल मैंने 1.5-2 साल हो गया सी घर दे ताने मार मार के बुरा हाल करता। मैं क्या एक बारी वड़ने हाँ सही फिर देखांगे। मैं क्या हम तुसी वड़ के बेटा हम तुसी निकलना नहीं है, मैं भी जिंदा रहा था आप वापस मिलांगे। मैं क्या तो अपनी लाइन फड़ ला। मैं उसको ये एडवाइस दे के गया और उसने मुझे बहुत गुस्से से देखा कि ये साला पहला है जिसने मुबारक भी नहीं दी और ऊपर से डिस्करेज कर रहा है। बिकॉज यू पीपल विल बी आउट ऑफ दिस ग्रुप हु विल हैव ए मिसमैच। देखो एक चीज मेरी याद रखना, जिंदगी में वो करने की कोशिश करना जो तुम कर सकते हो, जिंदगी में वो करने की कोशिश करना जो तुम करना चाहते हो। और दुनिया में 70% लोग कौन है, सीरियसली सुनना चाहिए, 70% लोग दुनिया में कौन से हैं जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो वो कर ही नहीं सकते, वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो वो करना ही नहीं चाहते। दिस इज वन ऑफ द रीजंस इफ यू सी द फेसेस, सब मरे हुए, सब नीचे से झुके हुए। मैं देखो कितनों को हिला चुका हूँ, ऐसा लगता है साला 16 सेक्टर की ओपीडी में बैठ के बारी नहीं आ रही। तो बस ये भी जबरदस्ती यहाँ बुलाए गए हैं कि सुन लो यार हमारी तो रिकॉर्ड में तो आ जाएगी, हो गया भाषण पर 20 मिनट। कब तक करोगे बेटा इतना लंबा, कब तक करोगे? वो करने की कोशिश करो जो तुसी कर सकते हो, जो तुसी करना चाहते। करना चाहते बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। लाइफ इज फॉर वंस। मरने के बाद आज तक कोई धर्म नहीं बता पाया कि बंदा कहाँ जाता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मार्क ही है। तो लेट्स बी हैव इट दैट दिस इज द ओनली वन एंड फाइनल चांस आई हैव कम टू दिस वर्ल्ड। लेट मी हैव ए वेरी प्लेयरफुल, प्लेजेंट, पीसफुल एंड सक्सेसफुल लाइफ।
entrepreneurship has to be recognized as one of career. Entrepreneurship skill क्या कहती है कि मेरे साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मत करो, जो कहते हैं हम करके देख लेते हैं, जो चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जॉब कर लेंगे, एक बार ही थोड़ा सा कर लेते हैं। सॉरी बेटा वो नहीं सक्सेसफुल होंगे, मैं पिछले 37 साल के एक्सपीरियंस से बोल, आई मे बी रॉन्ग फिर एंटरप्रेन्योरशिप में वही सक्सेसफुल हुए हैं जिन्होंने उसको एज ए कैरियर लिया कि अब मेरा इसमें मरना जीना, अब इसमें मेरा खाना, मेरे परिवार का सब कुछ इसी में, और जिनकी इतनी बड़ी पैशन है कि अगर उनको बुला के ये बोल दिया ना कि कल से तू चंडीगढ़ का डीसी डिप्टी कमिश्नर, तो वो ना कर देगा कि मैंने डीसी नहीं करना, मैं तो अपने काम में आऊँगा। इतनी डीप पैशन के लोग एंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेसफुल होते हैं। So you have to think for 6 months, 8 months, it doesn't matter. But start when you are convinced with yourself that it's a career, ये मेरे लिए परमानेंट career, क्योंकि हमारी सोच चारों तरफ से बंद है। बंद मीन्स एनवेलप भी बड़ी है, उसके ऊपर एक झिल्ली है, वो टूटी नहीं रही। हम कैरियर किसको मानते हैं, हमारे पेरेंट्स कैरियर किसको मानते हैं? बिकमिंग ए डॉक्टर, becoming an engineer, going to army, becoming IS, management computer courses. I say becoming entrepreneur and setting up an enterprise is also a career. दुनिया के सबसे अमीर लोग बिजनेसमैन हैं। हमें क्यों लगता है कि हम डॉक्टर इंजीनियर बन के क्या कर देंगे? I know hundreds, not single, hundreds of non-technical 12th pass जिसके अंदर 100 से ज्यादा डॉक्टर। आईबी हॉस्पिटल को ना सेक्टर 70 में, उसका मालिक से मेरा हाथ मिलाना है थोड़ा, 20-12 पास और बढ़िया चला रहा है, 3 जगह खोल चुका है, डॉक्टर उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। सो ऐसा प्रेशर क्या है कि डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी, IAS यही कैरियर है। लेट मी एक्सेप्ट इट एंड लेट बी प्राउड ऑफ दैट बिकमिंग ए एंटरप्रेन्योर एंड सेटिंग अप ए एंटरप्राइज इज आल्सो ए कैरियर। तो आप अगर इस सोच को साथ लेके जाएंगे तो आप खुद ब खुद इस सड़क पे चलने शुरू हो जाएंगे। बिकॉज अभी आप ऑप्शन में हो, अभी हाफ हार्टली हो, इसलिए हो नहीं। लेट मी फाइनलाइज दैट आई विल बिकम ए एंटरप्रेन्योर एंड आई विल सेट अप ए एंटरप्राइज एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम ए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सो एजुकेशन हैज टू बी डीलिंग विद द जॉब, इसको डीलिंग करो कि मैं कॉमर्स कर रहा हूँ, मैं कॉमर्स में ही नौकरी करूँगा, मैं केमिकल कर रहा हूँ तो केमिकल कर रहा हूँ। एंटरप्राइज में कोई एजुकेशन नहीं हो। जितनी केमिकल इंडस्ट्री है ना इंडिया में, उसके मालिक केमिकल इंजीनियर नहीं है। जितनी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, उसके मालिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर नहीं है। सो ये फियर और ये डर अंदर से निकालो। यू हैव टू ओनली मैनेज द थिंग्स वी आई इट्स लाइफ। एंटरप्रेन्योर्स आर हाईली प्रोफेशनल, सबसे प्रोफेशनल दुनिया में। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, दे आर हाईली प्रोफेशनल। हु आर प्रोफेशनल्स? प्रोफेशनल कौन होते हैं? Who are professionals? Professional कौन होता है? Expert. Who is professional? Who is professional? मैडम से पूछ लूं? अगली बारी बुलाएंगे नहीं। Who is professional? Who can do more in less time? Who can bring more results with less resources? कम रिसोर्सेज से ज्यादा रिजल्ट। आम आदमी क्या कहता है? कुर्सी भी होनी चाहिए, एलसीडी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, तब होगा। एक बंदा कहता बंदा ले आओ, हम करवा देंगे। Less resources, more results. Less time, more results. ये जॉब्स में नहीं अवेलेबल। जॉब्स में तो 1 बज गया, 1:30 बज गया, 4 बज गए, वॉचिंग कल्चर होता है। जॉब 5 बजे तो जाना है, पीछे भाग रहा भी है। वो कहते इतनी इमरजेंसी नहीं है, सवेरे आ रही हो, मैं निकल रही हूँ 5 बज गया, आधा घंटा घर पहुँचने में लगेगा। सो आई हैव टू लिव ए प्रोफेशनल लाइफ।
and I will get a maximum chance of living a professional life if I become a entrepreneur. We should not forget the fact that the richest and most powerful people in the world are entrepreneurs. दुनिया के सबसे अमीर वहाँ की गवर्नमेंट होती है, और गवर्नमेंट के पीछे कौन होता है? इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन। शुगर वालों को एग्जम्पशन मिली टैक्स में, क्यों मिली? शुगर लॉबी ने मोदी को घुमा दिया दिन भर, सारा हम सारा रोक देंगे तेरा काम। तो सबसे ज्यादा एग्जम्पशन शुगर केन और शुगर इंडस्ट्री, बिकॉज दे कैन गेट इट इज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया। America is famous that America is not run by the president, it is run by the entrepreneurs, industrialists, वो चला रहे हैं। फाइजर का केस सुना, सबसे ज्यादा फ्रॉड निकला फाइजर, तो उसको हाथ नहीं पास भी नहीं था, और उन्होंने टोटली बैन लगा दिया इस न्यूज पे। वो भाई साहब करोड़ों अरबों बिलियन के इंजेक्शन बेच के, यहाँ फाइजर कम लगा है, इधर कोविशील्ड लगी है, अमेरिका में है ही फाइजर, और उसकी वो इंटरव्यू देने को राजी नहीं है, और गवर्नमेंट उसको हाथ नहीं डाल सकती, गवर्नमेंट उसकी कंट्रीब्यूशन मोर देन 50%। सो द मोस्ट रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड आर एंटरप्रेन्योर्स। ये भी पहले छोटे छोटे धीरे धीरे बढ़े। ऐसा मत सोचना कि फाइजर की, बिरला की, टाटा की बातें सुना रहा है। नो नो नो, द ऑल स्टार्टेड विद स्मॉल। वो भी आपकी तरह थे। अंबानी का बाप तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचता था, क्यों छोड़ा था उसने पेट्रोल पंप? क्यों छोड़ा था? वो एक दिन टाई लगाना भूल गया, मालिक आ गया, कहता मेरे जो टाई कहता है थप्पड़ देने लगा, उसने बाजू को कहता कम टू माय रूम, कहता है कम आफ्टर 5 मिनट। 5 मिनट के बाद अपना रिजाइन लेके गया उसको, और एटलीस्ट मुझे और की बड़ी ब्लेसिंग दी, मैं तो पूरा रिजाइन लेके चलता था। मैंने अपनी सर्विस में नौकरी की नौकरी, लेकिन की अपनी जिस दिन चुन जाए उठने रिजाइन करता था, डेट चेंज करता। इतना दम रखना पड़ेगा आपको अगर एंटरप्रेन्योरशिप में आना है। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, यू विल बी वेरी फ्री एंड इंडिपेंडेंट पर्सन। और डर को निकाल दो, एंटरप्रेन्योरशिप में डर क्यों नहीं होता? यार मेरी रोटी का क्या होगा, मेरी तनख्वाह का क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, पिछले महीने क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं दिसंबर 18 में रिटायर हुआ, 1 जनवरी मेरे को याद ही नहीं हुआ, मैं फटाफट तैयार हुआ, टैक्सी लिया, मेरे को जनानी ने पीछे से पड़ा, सर जी कितने? मैं क्या मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कहती कल रिटायर हो गया था। मैंने कहा मर गए, पगड़ी उतारी वैसे ही, टैक्सी रखी। फिर 4-5 तारीख तक क्रेडिट हो जाता था, काफी अच्छा हो, वो क्रेडिट ही नहीं हुआ। मैंने कहा ये टू तो हुई, मोबाइल में क्या हुआ? मोबाइल में तो नहीं कोई फॉल्ट आ गया, पता करने गया, मेरे को याद आया कि जनवरी की सैलरी तो आनी नहीं। फिर क्या हुआ? आई एम वेरी हैप्पी, कुछ नहीं हुआ, उसी तरीके से सिस्टम सेट हो गया। Fear or entrepreneurship, they are like this. Those people who are fearful in very small moment, 2 मिनट में डर गए, पता नहीं क्या हो जाएगा, मर गए, लुट गए। Entrepreneurship में बड़ी अनसर्टेनिटी है, कभी लाखों रुपए की इनकम हो जाएगी, कभी लॉस में आ जाओ, कभी रोटी के लाने पर, यानी ये entrepreneurship का कल्चर है। तो इस सोच में अपनी सोच को डुबो कि I have to face the uncertainties. You will be the most successful entrepreneur in the world. 70% बेंगलुरु लग्जूरियस कार्स बिजनेसमैन की हैं, जॉब में नहीं है। टॉप वर्ल्ड क्लास स्टूडेंट कॉलेजेस, मोर देन 70% स्टूडेंट्स बिलोंग टू बिजनेस। ये हैरो स्कूल ऑफ लंदन का डाटा है। हैरो स्कूल ऑफ लंदन में 70% बच्चे बिजनेसमैन के हैं। हमारे जैसे नहीं है, हम तो मॉडल स्कूल में पढ़ा देंगे, सीनियर मॉडल में पढ़ा देंगे, वहाँ प्रिंसिपल से और टीचर से पढ़ा देंगे, प्रैक्टिकल से नंबर वन है नहीं। हमारी इतनी जिंदगी है। Are you getting me? So instead of entrepreneurship is split out in any of आपके अंदर से इनसिक्योरिटी का डर ही नहीं निकला, इसको फेंक दो, थूक दो। आज मेरे लिए थूक चुके ना कि वो कह गया था, थूक देते। जिस दिन बाहर आओगे ना ऐसे करके फिर कुछ नहीं होता है। जिसने अभी तक की रोटी दी है वो कल की भी देगा, तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। ये एक ही रास्ता है। सर एक फैक्टर और रहता है सर, जैसे हम एक एज के हैं कि कईयों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि कुछ एंटरप्राइज लगा सके। ऐसा कुछ नहीं, अब बड़ी स्कीमें आ गई बेटा, इतनी स्कीमें आ गई ना, अभी मैं आ जाऊंगा वैसे आपको स्कीम्स प्राप्त, हंड्रेड्स ऑफ स्कीम्स। बेटा मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मार्च मंथ के टारगेट नहीं पूरे हो गए, बंदों को पकड़ के ला रहे हैं कि लोन ले ले, लोन ले ले। पहुंचती थी ना बेटा हमारी अवेयरनेस नहीं है, हमें पता नहीं है
कि कौन सी स्कीम में कितना देना है, कौन सी स्कीम में कितना देना है, कौन सा बैंक कैसे दे रहा है। आर यू गेटिंग मी? सो एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योरशिप इज ए मैनेजमेंट फील्ड। एंटरप्रेन्योरशिप इज ए मैनेजमेंट। मैनेजमेंट समझते हो? यू हैव टू प्लान, यू हैव टू कंट्रोल, यू हैव टू सुपरवाइज। ये एक स्किल होती है। स्किल कैसे होती है? तबला बजाना स्किल है, बाजा बजाना, गिटार बजाना स्किल है। मैनेजमेंट एक स्किल है। ये स्किल आपको धीरे धीरे करने से आएगी, सुनने से नहीं आएगी, पहले से नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी। तो एक स्टेज कौन सी आएगी? आप 30% करेंगे, 70% करवाएंगे। ये मैनेजमेंट स्किल होती है। प्रिंसिपल कॉलेज की इसके पास क्या है? मैनेजमेंट स्किल। एक सेशन करा दो, हो रहा है सेशन, उसको न्यूज मिल जाएगी, हाँ जी खत्म हो गया। उसको वो खुद कितना कर रही है? 30%, 70% करवाएंगे। So successful person of the world are very good managers. They know how to manage. So entrepreneurship में 2-4 सालों के बाद आप 30% करेंगे, 70% करवाएंगे। ऐसा ना सोचो कि आप ही करते हैं। Few facts about the entrepreneurship. They are not only born entrepreneurs, but they can be. बड़े लोगों को ना ये रहता है कि मेरे बाप दादा किसी ने बिजनेस नहीं किया तो मैं बिजनेस कैसे करूँगा? मेरे दादाजी फौज में थे, मेरे फादर सेक्रेटरिएट में थे, मेरे चाची उधर थे। हमारी कोई बैकग्राउंड नहीं है बिजनेस की। 37% ऑफ द टोटल एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया दे आर क्रेडिट एंटरप्रेन्योर। वो बॉर्न एंटरप्रेन्योर नहीं है। एक क्लर्क का बेटा, एक स्टूडेंट का बेटा, एक गार्डनर का बेटा, दे आर एंटरप्रेन्योर जो हमारे पास स्टार्ट है। सो दिमाग में से ये भूत निकालो कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है और मेरे फैमिली में कोई बिजनेसमैन नहीं था, इसलिए मैं बिजनेसमैन नहीं बन पाऊंगा। अब क्रिएटेड मींस जो जिन्होंने अपने आप को एंटरप्रेन्योर क्रिएट किया, उनकी फिगर ज्यादा है। If systematic and organized training inputs are provided, entrepreneurs can be created. अगर आप proper training लोगे, तो entrepreneurs will be powerful. But still we have to remember what? Anybody can become entrepreneur, but हर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएगा। ये खास ख्याल रखना। कोई भी उठेगा तो एंटरप्रेन्योर बन जाए, तो हर रेडी वाला, हर टांगे वाला एंटरप्रेन्योर बन जाता। आपको अपने में देखना है कि मेरे में एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज कितनी है। अगर 18 चाहिए तो 18 में से अगर आपके पास 3 है, 4 है, 5 है, तो 5 से 18 पहुंच जाओगे, 4 से 18 पहुंच जाओगे, लेकिन 0 से 18 नहीं पहुंच जाओगे। कहने का भाव ये है कि 20-25% एंटरप्रेन्योरियल बॉर्न स्किल ह्यूमन बीइंग्स में होनी चाहिए। Then they can grow and they can develop as a entrepreneur. So anybody can become entrepreneur, but everybody cannot. अब anybody से मेरा क्या अर्थ है? Next slide क्या कह रही है कि entrepreneurs are above caste. किसी जट नहीं बन सकते, बनिए ही बन सकते हैं, ये चलता है ना, आपस में डिस्कस होता है। नो, ऐसा कुछ नहीं। Entrepreneurship is above caste. हर कास्ट में से entrepreneur है, हर creed में से, हर religion में से, हर फिजिकल अपीयरेंस की है। फिजिकल अपीयरेंस की कोई चाहिए होती है, सूट और टाई चाहिए, पजामे वाला भी एंटरप्रेन्योर है, कोट पैंट वाले भी। फाइनेंस की इतनी जरूरत नहीं होती। 20-25% हमारे पास होगा, 70% फाइनेंस हो जाता है, आपको बहुत इजीली होगा। एंड देयर इज नो एसेंशियल एजुकेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज अबव कास्ट, क्रीड, रिलीजन, फिजिकल अपीयरेंस, फाइनेंशियल एजुकेशन। सो एनीबॉडी कैन बिकम एंटरप्रेन्योर। Those who have entrepreneurial traits, उद्यमी जैसी विशेषताएं अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी में आ गई, तुम उद्यमी बन गए तो तुम उद्योग संभालोगे, उद्यमी बन गए, उद्योग लग गया, तुम उद्यमिता में आ गए। फटाफट 5-7 मिनट में आपके इनपुट स्ट्रक्चर बता देता हूँ। आई हैव 7-8 मिनट्स, 5-7 मिनट तो फालतू ले ही दूंगा। बिहेवियरल इनपुट्स, जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, फीलिंग नहीं बदलेगी, एक्शन नहीं बदलेगा, बिहेवियर नहीं बदलेगा, तब तक एंटरप्रेन्योर करना मुश्किल है। जब तक एंटरप्रेन्योर जैसा बिहेवियर नहीं होगा, एंटरप्रेन्योर जैसी थिंकिंग, फीलिंग, एक्शन एंटरप्रेन्योर जैसी होगी, तब तक एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे। एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे तो एंटरप्राइज नहीं बनेगा। तो अपने आप को अब बिहेवियरल इनपुट्स दो। बिहेवियरल इनपुट्स से मतलब कि फाइनल ईयर में आगे अब स्टूडेंट वाली सोच, स्टूडेंट वाली फीलिंग, स्टूडेंट वाला एक्शन निकालो। एंड इफ यू कंपेयर टू द वर्ल्ड क्लास एंटरप्रेन्योर्स, क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स, तो वी आर लेट। हम 20-21 साल को बड़ा वो समझते हैं कि अभी कुछ भी नहीं हो रहा है।
लेकिन इफ यू कंपेयर विद द यूरोपियंस एंड अदर कंट्रीज तो 21 साल में तो वहाँ कहीं के कहीं पहुँच जाते हैं, कहीं के कहीं पहुँच जाते हैं। सो अपने आप को बिहेवियरल इनपुट्स दो, यू हैव टू कंपेयर योर सेल्फ विद द एंटरप्रेन्योर। अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, फीलिंग बदलनी पड़ेगी, एक्शन बदलने पड़ेंगे, आपको नई बिहेवियर इनपुट्स देनी पड़ेगी, अपनी सोच के ऊपर एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर को लाना पड़ेगा। तो आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे, तभी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको एक्सेप्ट करेंगे। अगर हम घूमते फिरते सैर करते अंदर चलेंगे तो हमारे को कोई लोन नहीं देगा, बिकॉज बैंक को उसी को लोन देगा जिससे उसको 90% उम्मीद होगी कि ये वापस कर देगा, ये वापस करने योग्य है, इसमें वापस करने की क्षमता है। सो यू नीड नाउ ए बिहेवियरल चेंज इन द बिहेवियर। इंफॉर्मेशन बेटा इकट्ठी करो, जैसे आप ही शायद कह रहे थे जी पैसे का चक्कर पड़ा, इट्स यू डोंट हैव द इंफॉर्मेशन इनपुट्स। आप मेरा मोबाइल दे देना, मेरे से फोन पे बात करना, आई विल टेल यू एट दिस 10 स्कीम्स जिसमें वो उनके टारगेट नहीं पूरे हो रहे मार्च तक। Which are of the union governments? हाँ, कहीं की भी हो, स्टेट की हो, यूनियन हो, यार आपको पैसे से मतलब है, ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है, बाल की खाल मत उड़ा। तेरे को पैसे से मतलब है कि स्टेट या सेंटर से मतलब है? पैसे पकड़ो, काम शुरू कर। ठीक है, आप लोग दोनों ना मिला, मैं मंत्री नहीं हूँ, मंत्री करना है। So my request to all of you, 6 महीने सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो। ਤੁਸੀਂ बड़े लकी हो, ਹੁਣ इंटरनेट आ गए, साइट्स आ रही हैं। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जाते सी, फिर पंजाब फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, फिर लीड बैंक, अब तुम DIC डालो, सारा आ जाएगा उसका खाता। इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो, बिकॉज मोर देन 25% यूनिट्स इंडिया में बंद हुए, मतलब सिक हो गए, बंद हो गए, बिकॉज ऑफ उनके पास इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी बहुत जरूरी है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन एंड गाइडेंस, देखो बिजनेस करना है, ये मैंने फाइनल कर लिया। अब क्वेश्चन ये खड़ा है कि कौन सा बिजनेस? आइडेंटिफिकेशन, अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है? देखो इस कमरे के अंदर देखो 200 बिजनेस है। मैं कहता हूँ पखे बनाओ, ट्यूबे बनाओ, पर्दे बनाओ, AC बनाओ, पानी की बोतल बनाओ, टेबल चेयर गिनो, आपको 100 आइटम। लेकिन मैंने क्या देखना है? बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि आपको कहाँ अपॉर्चुनिटी है। और उसके बाद क्या मैंने लिखा? आइडेंटिफिकेशन, अपने साथ आइडेंटिफाई करो। हर आदमी क्या कौन सा बिजनेस पूछता है कि सर वो बिजनेस बता दो जिसमें तगड़ा प्रॉफिट हो। तो जब मैं बोर हो गया ना इस सवाल से, फिर मैंने एक को ये जवाब दिया था कि अगर ये बिजनेस मुझे पता होता जिसमें तगड़ा प्रॉफिट हो तो मैं पहले कर लेता, है नहीं? चाय भी बेच सकते हैं। हाँ, चाय में बहुत प्रॉफिट है। इसको आप ऐसा मत समझो कि ऐसे नहीं है। लेक वाला सुना है, वो जो उस पे वो पैसे लेता है, वो उसको क्या बोलते हैं सर? उसको क्या बोलते हैं वो ऐसे ऐसे आजकल सर हाँ QR पता नहीं यार, मेरे को डर लगता है चीजों से। मैं क्या जितने है वो भी नहीं खर्च हो जाते हैं सर। आजकल मतलब इसी को चाहे कोई मॉडर्न और लेक पे बंदा आता, मेरी बात सुन ले क्या करता है वो? पेड़ के नीचे अपना टेबल रखता है, चेयर रखता है, ग्रीन टी, देसी टी, फ्लांट टी। मेरे को एक एक्शन ले गया, कहता आपको दिखाता हूँ, आप बड़ी एंटरप्राइज की बात करते हो। चाय बनाता और वो उस पे लोग क्लिक करके वो आवाज आ जाती है कि पैसे हो। हाँ पेटीएम, हाँ जो भी है, पेटीएम शेटीएम, यार मैं तो बस नोट यार रखे हुए थोड़े से, बस वो भाई साहब डेली 700-800 रुपया आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस वो अर्न करता है। और 9-9:15 बजे वहां से करेगा जब शहर का लास्ट लॉट निकलता है। पेड़ के नीचे है उसका काम। Are you getting me? So business अपॉर्चुनिटी कौन सी है, इसको देखो और उसको अपने साथ आइडेंटिफाई करो। और मैं तुम्हें कह दूं कि मोहाली में जाजो की इंडस्ट्री लगा लो, एक जहाज भी बिक गया तो आपको 1 करोड़ रुपए बच जाएगा। सवाल ये खड़ा है कि मेरे को मोहाली में इतनी जगह मिलेगी, जहाज बनाने का लाइसेंस मिलेगा, जहाज बनाने के बंदे मिलेंगे। दैट मीन्स मैंने इसको अपने साथ आइडेंटिफाई नहीं किया। सो लोग रॉन्ग अपॉर्चुनिटी बिजनेस की लेते हैं, उठते और मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। नो, माय सजेशन इज पहले अपॉर्चुनिटी देखो कहाँ कहाँ है और फिर उसको अपने साथ आइडेंटिफाई करो कि मेरे पास कितनी रिसोर्सेज है और इन रिसोर्सेज में कौन सा बिजनेस हो सकता है। ये एंटरप्रेन्योरशिप में फेल होने से बचने का एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जितने भी आइडिया आ रहे हैं उनकी प्रोजेक्ट प्रोफाइल बनाओ, मीन्स कागज उठाओ,
पेन उठाओ, उसको हिंदी अंग्रेजी में लिखना शुरू कर दो। मेरे को इतनी जगह चाहिए, मेरी मशीन इतने की आएगी, एक दिन में इतने बनाएगी, हफ्ते में इतने बनाएगी, पैकिंग इतना होगा, उस पर फिर बिजली इतनी, पानी इतना, उस प्रिंटिंग का खर्चा इतना, उसको ट्रांसपोर्ट का खर्चा इतना, टोटल खर्चा इतना आ जाएगा। इतने का वितरण जरूरी है क्योंकि इतना मॉडल जरूरी है। ये आइडियाज ना आते जाते आते रहते हैं। सो माय सजेशन इज कि जब आप थोड़ा सा फर्म हो जाओ किसी चीज के बारे में, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ बेसिक प्रोजेक्ट फाइल, एक प्रोफाइल बनाओ 8-10 पेज की, जहाँ से आपको पता लगे कि हाँ मेरा प्रोजेक्ट इस टाइप का होगा। यू हैव टू गो टू मार्केट। देखो बैठ के तो एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन दी जा सकती है, मैं आपको एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन देता हूँ, लेकिन एंटरप्राइज तो आपको मार्केट में खुल जाना है। जो मेरे माइंड में है कोई आइडिया, वो पहले देखना जाए पड़ेगा ये कितने लोग बना रहे हैं, कौन कौन खरीद रहा है, मेरे कितने कंपटीटर होंगे, इनको कितना बच रहा है, मेरे को कितना बचेगा, आर यू गेटिंग मी? तो ये पर्सनली जाना पड़ेगा। दैट मीन्स कि आपको पर्सनली मार्केट सर्वे करना पड़ेगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हाईली रिकमेंडेड इज पर्सनल मार्केट सर्वे। मार्केट मीन्स रॉ मटेरियल की परचेज और प्रोडक्ट की सेलिंग और परचेजिंग दोनों कम से कम 2 महीने लगा के पता करो ये कौन कौन बना रहे हैं, कैसे बन रहा है, कहाँ से रॉ मटेरियल मिल रहा है, मशीन खराब होगी तो कहाँ से बनकर आएगा, कैसे ठीक करेगा। ऐसा ना हो आप ऐसी मशीन ले ले जो अचानक ही खराब हो गई हो, 20 दिन बंदा आया ही नहीं मशीन पे, 20 दिन अगर आपका काम बंद रहा तो आपका वैसे ही सारा कुछ माइनस में चल जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट द मार्केट सर्वे। फिर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी मार्केट सर्वे के बाद, 28-30 पेज की रिपोर्ट। अगर नहीं बनेगी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट सारे बना देते हैं, उनसे बनो। देन यू हैव टू गो टू टेंडर, बिकॉज आप में से कोई भी खुद नहीं लगा पाएगा, ठीक है ना। स्टूडेंट को पेरेंट्स नहीं देगा पैसा कि यार बीए करा दिया तू फिर आ गया 10 लाख लेने, नहीं देंगे ना पेरेंट्स। तो मेरे को मेंटली हैप्पीली एडमिट करना है कि आई हैव टू गो फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, मुझे लोन लेना ही लेना है। और आप लो भी क्यों ना, जब सरकार की इतनी स्कीमें हैं स्टूडेंट्स के लिए तो आप लोन लो। लोन लेते समय जुबानी बात नहीं होती, यू हैव टू गिव हिम ए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी बनेगी 28-30 पेज की, जिससे उसको हमने कन्विंस करना है कि दिस यूनिट इज वाइबल, ये चल जाएगा। क्योंकि बैंक अगर आपको 100 रुपया दे रहा है ना, तो बैंक की उम्मीद क्या है कि यार ये साला 200 कमाने, 100 बच गया, 50 ये दे दे, 100 मुझे दे। अगर उसको ये शक पड़ गया ना कि मैं 100 दे रहा हूँ और ये तो 50 भी नहीं कमा पाएगा, वो कभी हमारा लोन छीन नहीं ले रहा। क्योंकि आपको बैंकिंग इंडस्ट्री में इतनी स्ट्रिक्टनेस है कि अगर यूनिट सिक हो गया, बंद हो गया, तो उसकी प्रमोशन भी रुक जाती है और उसकी ट्रांसफर भी हो जाती है। सो यू हैव टू हैव ए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। धीरे धीरे बनाएंगे, 6 महीने का प्रोजेक्ट रखेंगे, ऐसे हफर दफर ओवरनाइट बनाने की कोशिश मत करो, बिकॉज इट्स ए लॉन्ग टर्म कैरियर, इट्स ए कैरियर ऑप्शन। पैसा कहाँ से आएगा, ये 2-3 महीने पहले से सलाह करनी है। मेरे पास कितना है, मेरे फादर कितने दे देंगे, मेरे पास रिजर्व कितने हैं, बैंक कितना दे देगा, सब्सिडी कितनी है, ये मुझे पहले से क्लियर होना चाहिए कि यूनिट लग गया और अब मेरे पास रॉ मटेरियल के लिए पैसे नहीं है, तो वो नहीं बात बनेगी। दैट मीन्स के एंटरप्रेन्योर्स आर वेरी गुड प्लानर्स, एडवांस में प्लानिंग करेंगे, मीन्स ऑफ फाइनेंस पहले से देखने हैं। कुछ मार्केटिंग और मैनेजरियल स्किल्स आपको सीखनी है, वो करने से ही आएगा। अगर एक माँ ये सोचे ना कि बच्चा गिरना नहीं चाहिए, इसको साइकिल आ जाए, तो बच्चे को कभी साइकिल नहीं आ सकती। साइकिल किसको आएगी, जो साइकिल से फिर उसको पता लगता है कि यार मैंने हैंड ब्रेक लगा दी, मैंने क्या किया क्या नहीं किया। साइकिल हमेशा चलाने के बाद, गिरने के बाद एग्जैक्ट आती है। स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप हमेशा करने के बाद आती है, भाषणबाजी से सिर्फ मेरी एजुकेशन क्लियर होती है। सो आपको कुछ मैनेजरियल स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स बहुत जरूरी है, बिकॉज आप एंटर करेंगे कंपिटिटिव मार्केट में, मार्केट में नहीं। आप दुनिया में कोई चीज बना लो, जब आप मार्केट में आएंगे तो वो पहले से बिक भी रही है और बन भी रही है। तो आपको कौन सा गाहक लाना है, पंजाबी में बोलते हैं टुटवा गाहक। मान लीजिए ये भाई साहब शर्ट्स का काम शुरू करते हैं, नहीं करेगा, आप तो बता दें, देखो कैसे बता रहा, अच्छी ना हिला दम से, वहां तो नारे थोड़ी देते लगाते हो, जितनी स्ट्राइक होती है आप तो आप नहीं ला रहे। मान लीजिए ये शर्ट्स बना रहा, ये मेरे को आगे कहे कि सर आप शर्ट्स ले लो मेरे से, तो मेरे दिमाग में पहला सवाल क्या आएगा, यार जहां से मैं लेता हूँ मैं वहीं से लूंगा बेटा,
मैं इससे क्यों लूं? मैं 10 साल से जहां से शर्ट लेता हूं मैं वहां से लूं। तो अगर इसको मेरे को खींचना है तो कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी, कुछ एक्स्ट्रा कन्विंसिंग, कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं तो आम ग्राहक क्या कहता है कि मैं जहां से लूंगा मैं वहां से ले रहा हूं। दैट मींस वी आर नॉट एंटरिंग द मार्केटिंग, वी आर एंटरिंग द कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग। सो वी हैव टू कन्विंस द कस्टमर। कुछ लीगल सिस्टम पढ़ने बहुत जरूरी है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में शुरू से पढ़ने शुरू करो। कल को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले आ जाएंगे कि आपने यहाँ पे बुला दिया, आपका पानी आ रहा है नीचे, आपका धुआं आ रहा है। बड़े लोग, मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूँ कि बड़े लोग इन चीजों को निग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। यूनिट बहुत बढ़िया चल रहा होता है, अगले दिन वो ताला लगाने आ जाते हैं पोल्यूशन वाले, ये जी आपका तो धुआं बहुत है, म्युनिसिपल वाले आगे आपने थोड़ा नहीं कर दिया। हमने जब नए सिरे से शुरू करना, नए सिरे, तो हमें इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। सो डेविड मैकलाइन ने अपनी किताब के एंड में ये लिखा था कि एंटरप्रेन्योर वो बनता है जिसकी सोच हमेशा हमेशा के लिए ये कहती है कि आई कैन, मैं कर सकता हूँ। ये दम होना जरूरी है, तभी एंटरप्रेन्योर कर सकता है बंदा। अगर लगे भाई नहीं होगा, भाई मेरे से नहीं होगा, मैं कैसे करूँगा, क्योंकि आपको ना बेटा बड़ी एनिमी एनवायरनमेंट मिलेगी। खासकर इंडिया में ना 90% लोग कुछ बिजनेस शुरू करने वक्त हफ्ताई नहीं करते। तुम्हारे माँ बाप क्या कहेंगे, इन पंगों पे पड़ गया, वो किसका भाषण छोड़ा है, बलबीर सिंह का, उसको बुला कर 2 उसके लगाना सिर पे, हमारे बच्चे काम कर रहा है, चुपचाप 8,000 रुपये लग गया, 9,000 रुपये लग जाए, 10,000 रुपये लग। पेरेंट्स से सपोर्ट 10% को नहीं है, क्योंकि मैं तो बड़ा क्लोजली इन्वॉल्व हूँ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर। जब रिश्तेदारों को पता लगेगा, देखो अंबानी बन रहे हैं, अदानी बन रहे हैं, चुपचाप नौकरी लग जाओ, फिर सिक्योरिटी गार्ड लग जाए, 12,000 13,000 कॉन्ट्रैक्ट पे आता की हो जाए, कानून रेगुलर हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पे आते लोगों को भर्ती करा देते हैं, कौन सा लॉलीपॉप देंगे कि कल को यार 19 साल से जूलॉजी की टीचर देगी। मैं क्या मैडम कितने साल हो गए कॉन्ट्रैक्ट पे रहने के? मैं क्या इकट्ठे सुसाइड करिए कि कल कहने कि हम नहीं कर रहा हूँ ठीक है। So brilliant, I don't want to name it. So intelligent, so 5-6 बच्चे प्रति मेडिकल कॉलेज में आते हैं। Who cares? Who cares? So entrepreneurship में environment बड़ा मतलब rebellion है। धक्का मारते हैं लोग कि मत कर मत कर मत कर। हर बंदा बैंक वाला भी कहेगा किस चक्कर में पड़ गया ये वो, क्योंकि वो टेस्ट कर रहा है कि ये कितनी बारी आएगा। 10 बारी जाओगे फिर उसको लगेगा कि वाकई करना चाहता है। 2-3 बारी में आपने जाना बंद कर दिया तो वो समझ जाएगा कि ये वैसे ही आ गया। दैट मीन्स के आपको बड़ी मतलब रिपेलियन एनवायरनमेंट, धक्के वाली एनवायरनमेंट मिलेगी। सो मेरी सोच और मेरे बिहेवियर में कूट के क्या पर भरा होना चाहिए कि आई कैन बिकम, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई विल क्या, डिजायर, पैशन, फायर इन द बेली, इधर आग लगी हुई है, करके किसी तरीके काम नहीं करूंगा, अपना काम करूंगा। 10 साल के बाद एम्प्लॉइज निकल रहे होंगे रोटी डब्बा लेके बाद, तो मैं कहूँगा ये मेरा एंटरप्राइज है। वो विल की जरूरत है। जितने मर्जी धक्के, कपड़ों के चिथड़े निकल गए, डिनर ब्रेकफास्ट में, ब्रेकफास्ट डिनर में, तब भी मैं अड़ा हूँ। कौन सी चीज़ अड़ा रही है मुझे? मेरी विल, मेरी पैशन। पैशन बहुत जरूरी होती है जब कंपटीशन ज़्यादा हो। करना ही करना है, करना ही करना है, चले मर्जी धक्के पर। जिसकी विल खत्म होगी ना, वो अदब जब में छोड़ के भाग जाएगा। और जो अदब जब में छोड़ के भाग जाएगा वो ना एंटरप्राइज करेगा ना जॉब करेगा। सो आई कैन डू इट, आई विल डू इट। इन द लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई यार मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि आज आप स्कूटर पे आ रहे हो, मान लिया कार वाले में होंगे 2-4, और मान लिया स्कूटर पे जा रहा हूँ, कल को मेरी जॉब लग गई, मैं इंडिपेंडेंट हो गया, तो मैंने साइकिल भी शुरू हो गया, क्योंकि स्कूटर तो अफोर्ड ही नहीं हो रहा। सो जो मेरे माँ बाप ने मुझे स्टैंडर्ड्स दिए हैं, स्टैंडर्ड ऑफ माई बेडरूम, स्टैंडर्ड ऑफ माई क्लॉथ, स्टैंडर्ड ऑफ माई कन्वेंस, स्टैंडर्ड ऑफ माई हॉबीज, I should be 50% ahead of it. मैं एमफिल के वक्त अड़ गया, मैंने कहा मैं एमफिल क्या छोड़। मेरे फादर ने, he died in
2008 मेरे फादर ने उस समय मुझे ये बोला, कहते आई एम इकोनॉमिक्स, यू मस्ट डू एम। मैं के कारण कहते वो जनरेशन जिंदगी में सक्सेसफुल होती है जो अपने माँ बाप से एक कदम आगे आगे। सो जिस स्टैंडर्ड में आप हो ना, उस स्टैंडर्ड से आपको आगे बढ़े, और आगे जाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप में आई मस्ट डू इट। तनख्वाह जहाँ भी जाओगे ना 20,000 25,000, मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट की बड़ी बुरे हाल है। मैं पीछे 15-20 दिन पहले दरबार साहब गया था, परिक्रमा में घूम रहा था, एक बंदा मेरे को बड़ा ऐसे ही लगा, कुछ आदत होती है लोगों को देखने की, मैंने उसको रोक लिया, वर्षा लेके घूम रहा था, पीला से कपड़े लेके घूम रहा दरबार साहब। मैं क्या बेटा तू कितना पढ़ा है? कहना अंकल क्यों है? मैं क्या मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। कहना आई एम बीटेक फ्रॉम, जो उसने बोला मैं नहीं बोलना यहाँ, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट है बनाम। मैं तो इंजीनियर, मैं क्या हाँ, मैं कितने पैसे मिलते हैं? मतलब 400। मैं क्या इतनी थी? कहना सर 3 साल हो गए घरे बैठे हैं, रिश्तेदार ने घर ने ताने मार मार के बुरा आता। मैं क्या फिर? कहना इतने आ जाएगा, 8 घंटे ड्यूटी है, गुरु रामदास का नंबर खा लीजिए, अप्लाई कर रहे हैं देखिए। सो अगर उसकी कैलकुलेशन की जाए ना, एक इंजीनियर अभी इंडिया में इस टाइम पंजाब में 15 से 20 लाख में बनता है। तो अगर तुम्हें 20,000 रुपया महीना में मिला ना, तो 12 दूनी 24, 2,40,000। तो 2,40,000 में से 1,20,000 तो आप खर्चेंगे, कितना बचा? 1,20,000। सारा 10 साल लगेगा ब्रेक इवन पे आने में, नो प्रॉफिट नो आने पे, जो जितना खर्चा तुम्हारी एजुकेशन पे हो गया। आर यू गेटिंग मी? मेरी बात क्लियर हो रही है? तो कम से कम साला ब्रेक इवन पे तो आए हम जिंदगी में। अगर हमारे पे 15 लाख लग गया तो कम से कम 15 लाख तो 5 साल में कमा लें, और 20,000 की नौकरी से 50% खर्चा मैं बदल रहा हूँ, 50% सेविंग, तब भी 12 साल लगते हैं ब्रेक इवन में आने। सो लेट मी firmly decide that it is must for me, I must do it, इसके बगैर कोई चारा ही नहीं है मेरे पास। मैं लो स्टैंडर्ड आ जाऊंगा जो स्टैंडर्ड मेरे पेरेंट्स ने मुझे आज की डेट में दिया। 70% ह्यूमन बीइंग्स आर सेम, सिगमंड फ्रॉइड की वर्डिंग है, ही इज द मैन हु स्टार्टेड हिज करियर फ्रॉम ऑस्ट्रिया। अमेरिका में जाके ये पहला बंदा था जिसने रेसिज्म के अगेंस्ट बात बोला। अमेरिका में रेसिज्म हुआ, ये बंदा था जिसने पहले एक चीज दी थी कि 70% ह्यूमन बीइंग्स आर सेम। सो कभी जिंदगी में लगे ना मैं नहीं कर सकती, मैं होगा मैं नहीं कर सकती, तो ये लाइन बेटा अपने दिमाग में बिठानी क्या, 70% लोग एक जैसे हैं, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस इज, जो हिलता है ना उसको रट्टा मार लेना और सांस ले जाना, जो हिल रहा है। जिंदगी में बड़ी बारी बेटा, बड़ी बारी नहीं, रोज ही बड़ी बारी आपको लगेगा कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकती। कुछ नहीं करना बेटा, शीशे के आगे खड़े होके अपने आप को पूछना है, Who said I cannot do? किसने कहा मैं नहीं कर सकता? अगर तो जवाब मिल गया ठीक है, अगर जवाब नहीं मिला इसका मतलब वो आपके दिमाग में आपके बारे में मन कहन कहानी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रीजुडिसेस। इंसान को आदत होती है, इंसान अपने दिमाग में मन कहंत कहानियां बनाता है, कुछ नेगेटिव बनाते हैं, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है। कुछ कौन सी कहानियां बनाते हैं, मैं कमाल ही कर दूंगा, मैं दोनों डेंजरस है। सो सिगमंड फ्रॉइड कहता है 70% ह्यूमन बीइंग्स आर सेम। लेकिन एनवायरनमेंट आप पे इतना प्रेशर डालते हैं कि आपको कई बार ये लगने लग जाता है कि मैं ये नहीं कर सकता। जब भी जिंदगी में ये लगे कि मैं ये नहीं कर सकता, शीशे के सामने अपने आप को खड़े होकर पूछो, Who said I cannot do it? अगर जवाब नहीं मिला इसका मतलब ये प्रीजुडिसेस है, तुम्हारे दिमाग की मनगढ़ंत कहानी है तुम्हारे बारे में, तुम ये सब कुछ कर सकते हो। थैंक यू सो मच। BONO 6 thinking hats, part 1, 6 action shoes,
पार्ट 2 पुट्ठी नहीं पढ़नी, पहले एक्शन ना पढ़ लेना, पहले थॉट। ये दोनों पढ़ोगे दुनिया का कोई आदमी भी बनना चाहोगे तो बन जाओगे। ये बड़ी कन्विंसिंग किताब है, बड़ी सिंपल अंग्रेजी में। एनीबॉडी एल्स, कोई सवाल? सर क्या आपने नहीं सोचा अपना एंटरप्राइज बनाने के लिए? सोचा था यार, उन दिनों ना तो क्लासें लगती थी ना कोई समझाने वाला था इस तरह से। अब मैं तो 83 का पास आउट हूँ, एमफिल मैंने 83 की, एमबीए मैंने बाद में की थी। तो इतना कोई गाइडेंस नहीं थी, ऐसे अवेयरनेस कैंप नहीं होते थे। हम इतने लकी नहीं है जितने लकी तुम हो। देखो 3 मेडलें लगा दी, इनकी एक दिहाड़ी की तनख्वाह है ना जो तुम्हारे से ली तो तुम ठीक हो जाओगे सारे, समझ रहे हो? ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है तुम्हारा। तो बेटा उस टाइम ना तो अवेयरनेस थी ना गाइडेंस थी, हमारी सोच बड़ी छोटी थी और वो हम ककून में थे। ककून समझते हो? हाँ, एक अंदर झिल्ली सी बन जाती है ना। तो मैंने कहा कि अभी तो अटके, फिर आगे देखते हैं। धीरे 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 फिर कुछ फैमिली इश्यूज ऐसे इस तरह से शुरू हुआ। फिर हमने कहा कि यार अब अगर ऐसा काम करेंगे तो 2 साल या 3 साल लगेंगे, वो लगेंगे तुमको भी। सो मैं इस कंक्लूजन में हूँ कि यू आर एट द राइट एज टू डिसाइड, बिकॉज यू कैन पोस्टपोन अदर सोशल कंपल्शंस कि आ तेरा ब्याह कर दिए, या तेरा ये कर दिए, सानू भी पोते का मुंह दिखा दे तेरी दादी के। ये काम नहीं करने ना अभी। तो यू कैन गो फॉर एंटरप्राइज बिकॉज यू हैव द गाइडेंस। मेरी मेल है, मोबाइल है, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एनी टाइम, बट प्रेफरेबली ऑन सैटरडे संडे आई विल आंसर यू। एक बारी गाइडेंस एक छत के नीचे मिल जाए ना तो काम हो जाता है। गाइडेंस के बगैर रोड से नहीं पता लगती कोई इधर जा रहा है उधर जा रहा है। 84, 83, 82 में ऐसे कुछ प्रोग्राम, कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स कख नहीं होता था। बैंक हमारे वक्त में बैंक का हाथ होता था, पैसे जमा कराओ और घटाओ, बस और कुछ नहीं था। अब तो देयर आर 50 स्कीम्स फॉर द यंग एंटरप्रेन्योर्स। The only unfortunate part is that you don't know, and bankers are not coming to the college to address you for the schemes. वो communication gap चल रहा है। आप बैंक्स की साइट्स पे जाओ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम्स पे जाओ, आपको वैसे ही हौसला हो जाएगा कि यार इतने पैसे देने हैं, मैंने तो इतने लगाने हैं, आई कैन डू दैट। Any other question? सर कोई न्यू प्रोडक्ट अगर हमें लॉन्च करना है, हाँ, तो फिर हमें पब्लिक को बताना पड़ता है कि हाँ, हमारे प्रोडक्ट में ये खास है। हाँ, तो सर हम जैसे अब इनिशियल में हमारे पास इतना फंड नहीं होगा कि हम एडवर्टाइज करें हाँ, प्रोडक्ट को, तो सर कैसे हम ज्यादा से ज्यादा पर्सनली जाके करेंगे बेटा। शुरू में तो पर्सनली जाना पड़ता है। देखो पहले 3 साल आपके ना P2P होंगे। P2P नोट कर ले। व्हाट इज P2P? प्रोप्राइटर टू पीएन। प्रोप्राइटर का रोल भी प्ले करना है, पीएन का भी करना है। शुरू में पीएन नहीं मैं खुद कर पाऊंगा, उठ के रोटी भी खुद गर्म करनी है और पानी भी खुद लाना है। ऐसा ना हो कि आप मैं शुरू में एसी लगा के बैठ जाऊं, पीएन रख के बैठ जाऊं। मैंने हजारों एंटरप्राइज डूबते देखे जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप कर दिया और प्रोडक्ट चला दिया। शुरू में यू हैव टू गो ऑन फुट। हरतेग एंटरप्राइज जाता है मोहाली में, हरतेग सोलर्स नहीं जानता, 2000 करोड़ का यूनिट है। उस्ताद जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके स्टाफ के लिए मैं क्लासेस लगाता हूँ। वो मोटरसाइकिल पे बारिश पे राजपुरा मंडी गोविंदगढ़ अपना ऑयल बेचने जाता था। और फिर जब मैं उनसे एसोसिएट हुआ तो मैंने वो उस मोटरसाइकिल को रिटेन करवाया। उनको कहा, मैंने कहा इसको सजा दो, वहाँ रोड़ी सी लगा के ऊपर रखाया। मैंने कहा आपको चलते फिरते आपकी याद आएगी। वो कहता मैं पैदल जाता था, लालों को कन्विंस करता था, और मार्जिन था 1%, 1.5%, इससे ज्यादा मार्जिन नहीं था। देखो बेटा शुरू में ना जेस्टेशन पीरियड होगा ही होगा। जेस्टेशन पीरियड मीन्स 2, 3, किसी केस में 4 साल लगेंगे 3 साल लगेंगे आपको प्रॉफिट में आए। अगर वो पीरियड आप किसी तरह भी खींच के ना, आंखें बंद करके दिल पे पत्थर रख दें, तो दुनिया के माने हुए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाओगे। मैक्सिमम लोग उस पीरियड में वापस चले जाएंगे। और वो जेस्टेशन पीरियड है ही है, वो सबके लिए है, आपके लिए नहीं है। क्योंकि शुरू में ब्रेक इवन भी आना बड़ा मुश्किल होता है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस भी आना मुश्किल होता है। तो आंसरिंग योर क्वेश्चन इन समरी दैट यू हैव टू गो पर्सनली एंड टेल एटलीस्ट रोज के 20 घर रखो, 20 घरों में अपना प्रोडक्ट बताओगे, ठीक है। महीने के चल 600 नहीं तो 400 घर भी होंगे ना, 400 का 10%, 40 लोग भी आगे ही हुआ क्या नहीं? पर्सनली करना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट, पैम्फलेट, ये आप खर्चे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। क्योंकि 3 साल आपने ये देखना कि मुझे 0 प्रॉफिट है, तो 3 साल में आपने खर्चा देखना, मेरा महीने का 40,000 खर्चा है, रोटी पानी खाना पीना किराया, ठीक है। 40,000 12 चौके 48,
4 लाख 5 लाख लगा लो, ठीक है। दैट मीन्स आपने कम से कम 10 लाख रुपया बिल्कुल सेपरेट रखना है जिसको छेड़ना है, ताकि आपकी रोटी के लाले ना पड़े, और फिर एंटरप्राइज की तरफ करना है, यू विल बी थ्रू। क्योंकि अगर आप शुरू में रोटी के लाले पड़ गए, उधर से एंटरप्राइज, आप फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ दोगे, घर वालों ने जुतियां मार के वापस बुला लेंगे। आर यू गेटिंग मी? तो मिनिमम एक्सपेंसेस को हम रिजर्व अलग रखें। वो लड़के बहुत सक्सेसफुल हुए हैं जिन्होंने मिनिमम खर्चे अलग रखे, फिर जो बचा उससे चलाया। एंड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 50,000 1 लाख, यार उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार चलना चाहिए, अपने आप सर्कुलेशन में मनी आएगी, तो आपके आप ऑर्डर आएंगे, तो आप अपने आप ही शुरू करते हैं। Thank you so much, Raman. Good afternoon to all of you. It's indeed a great honor and privilege to extend a vote of thanks. My profound thanks and gratitude are due to Sir Dalwir Singh ji, the eminent speaker of the day, for sparing his valuable time and acceding to our request to cultivate entrepreneurial skills, attitude and behavioral development among you people. Sir, your motivational and refreshing ideas have provided our students a platform which will inculcate theoretical as well as practical skills. Thank you, sir, for such an effective, systematic and well-prepared session. I am sure today's session is able to spark the entrepreneurial spirit in the budding innovators by guiding them on how to convert their innovative ideas and emerge as successful entrepreneurs. Becoming an entrepreneur is an important career decision, and to plunge into this domain requires the right skill set, attitude and behavior, as it is perfectly and very effectively explained by the eminent speaker of the day. Thank you so much, sir. Thank you so much. I extend my gratitude to our principal, Dr. Navjot Kaur, who has always been a great support and inspire us to conduct such activities. Thanks are also due to my worthy colleagues, who are always a constant source of inspiration and provide valuable contribution in making every event a success. I take this opportunity to thank all my dear students and the members of Innovation Cell for their enthusiastic participation and cooperation in the smooth conduct of this session. Once again, I thank you everyone present here for sharing this special moment with us. Have a nice day. Thank you so much. Thank you.